So, good morning, and I welcome you all for today's Tally training session. That is session number 8. So, let's begin where we stopped yesterday. So, let me start with the selection of company. I'm selecting the same company on which we are working for so long. So, it is RIL Company Private Limited 2021. So, just choosing that company, entering my credentials, username and password. Yeah, so I'm already into the company now. So just to brief you, what we did yesterday, day before yesterday, we finished with our inventory info, that is stock item masters or inventory related masters. So post that, we started with the transaction, and in transactions, I explained you about what are the significance of each of the voucher type, that is contra, payment, receipt, general, sales, credit note, purchase, debit note, reverse general, memos. Stat payment, of course, is something extra tagging. So up to memos, we have got accounting vouchers. And then we started with the example of purchase cycle. So, to begin that purchase cycle, we started with the purchase order. After purchase order, we entered the purchase invoice, and after entering the purchase invoice, we entered the payment, made the payment to supplier, and we finished with that part. Later on, we moved on to the sales cycle. Sales cycle began with sales order. After sales order, we entered the delivery note. Okay, delivery note. Post that, we entered the sales invoice. I showed you different ways of entering the sales invoice, like accounting mode, invoice mode. Within invoice mode, again, if it is a service invoice, then it's called accounting invoice. So we saw, even I briefed you about that particular invoice type as well. Then we moved on to different F12 configurations. What you need to use, the configurations you need to use for your invoicing designing, or maybe making some changes, removing certain information, adding certain information, etc. We can do through F12. Again, I explained you about F12 is available. F12 key is available on screen level and on the print level as well. Right, so in F12, if you remember, we had finished this particular portion. Sorry, this is related to payment. Let me go to the sales voucher. So F8 is for sales. I'll choose my sales voucher, and any of these voucher type you can choose, right? So again, I press F12 button, that is F12 configure. We had seen all these options like enable supplementary detail, which pops up the window asking us about the supplementary details, order number, delivery numbers, and again, some other informations like buyer, consignee, all that, all those details were captured. We call as a supplementary details. Allow separate buyer and consignee. Within that window is this option. Use common ledger uh, account for item allocation. Yes, we have not looked at this particular option. So let me finish up. I think this is the only one is pending. So if I just say yes to it, what happens? But let me show the screen before when it is set to no. ये अभी नो हमने सेट किया हुआ है, जो ऑप्शन था हमारा यूज कॉमन लेजर अकाउंट फॉर आइटम एलोकेशन, राइट? तो ये देखिए, ये ऐसे अपनी स्क्रीन है. अभी अगर मैं F12 प्रेस करके ये पर्टिकुलर ऑप्शन को, दैट इज यूज कॉमन लेजर अकाउंट फॉर आइटम एलोकेशन, इफ आई सेट इट टू यस, what happens to your screen? Just look at it. Can you notice some small change? I guess you would have, below this reference number, we had a party name, and below party name, there was no sales ledger displayed. I repeat, there was no sales ledger displayed, which has started displaying. So if I press F12, I say no to it, Control A to save. See, that sales ledger has disappeared. Why this is, and what is the use, what is the significance, what is the convenience it provides. Okay, so let me come back to our accounting principles once again. As I said, even though you are making sales invoice, आप sales invoice बना रहे हो, but at the background, ये आपको as an accounting entry के तौर पे सेव करना होता है. ये particular transaction है, it should be saved in accounting format as well.
यानी कि जैसे सेल्स एंट्री है तो हमें डेबिट टू कस्टमर देना है, क्रेडिट टू सेल्स लेजर देना है और क्रेडिट टू जीएसटी लेजर। ये इस तरीके से हमें अकाउंटिंग एलोकेशन करना है। बेसिकली अकाउंटिंग डेबिट एंड क्रेडिट भी मैनेज करना है, जो आपको आपके सामने के स्क्रीन में डेबिट क्रेडिट के रूप में नहीं दिखाई दे रहा है, राइट। तो अगर ये मैं ऑप्शन को नो रखूं, इसमें थोड़ा स्लाइटली मैं नॉर्मल देन से थोड़ा ज्यादा टाइम समय ले रहा हूं, क्योंकि ये आपको इसका इंपॉर्टेंस समझना जरूरी है कि ये चीज या तो ये पर्टिकुलर ऑप्शन किसके लिए यूज होता है। तो सपोज मैं अपना ये केएलएम कस्टमर को मैं चूज करता हूँ, और केएलएम कस्टमर के बाद ये मेरा सप्लीमेंट्री विंडो है, यहाँ पे मैं अपनी पूरी डिटेल्स फिल करता हूँ। आगे जाके मैं जब भी आइटम चूज करता हूँ, ये सपोज मैं आइटम चूज कर रहा हूँ से एफजी, अपना जो फिनिश गुड्स वाला आइटम है, तो यहाँ पे मैं चूज कर रहा हूँ। और चूज करने के बाद राइट, यहाँ पे अगर मुझे लोकेशन चूज करना है मुंबई, तो ये ऑलरेडी मेरा स्टॉक है यहाँ पे। सो इसमें से सपोज मैं 10 क्वांटिटी में बेचना चाहता हूँ, तो ये सब कुछ आ गया। अब भी ध्यान रखिए, क्योंकि ये विंडो के बाद हमें जो चेंज हम ला रहे हैं, ये तो जो ऑप्शन हम देख रहे हैं वो चेंज ये विंडो के से रिलेट करता है। ये देखिए यहाँ पे वो क्या पूछ रहा है, अकाउंटिंग एलोकेशन फॉर एफजी स्टॉक आइटम 1। तो मैंने यहाँ पे कहा है कि इट इज अ सेल्स अकाउंट, कि मेरा सेल्स अकाउंट यहाँ पे क्रेडिट होना चाहिए। ऑफ कोर्स आपको डेबिट क्रेडिट नहीं दिखाई देता, क्योंकि टैली का कंट्रोल इस तरह है कि यहाँ पे वो आपको सिर्फ क्रेडिट होने वाले लेजर अकाउंट ही बताएंगे। यानी कि यहाँ पे एक तो सेल्स अकाउंट या तो इनकम अकाउंट, ये दो ही अकाउंट आपको दिखाई देंगे। अगर आपको याद रहेगा तो मैं इसके लिए कहता हूं कि प्लीज ensure that you are using the same voucher type, you are using the same voucher type which is meant for that purpose। जैसे मैंने कहा, कॉन्ट्रा के लिए आप कॉन्ट्रा वाउचर यूज किए, पेमेंट के लिए आप पेमेंट वाउचर यूज किए, रिसिट के लिए रिसिट वाउचर यूज किए, सेल्स के लिए सेल्स वाउचर। क्योंकि देखिए यहाँ पे टैली आपको, आप अगर नए नए यूजर हो, लेमैन हो, तो आपको यहाँ पे वो कोई भी गलती करने की कोई भी एक रूम नहीं छोड़ता। यहाँ पे आप गलती नहीं कर पाओगे, क्योंकि जब भी मैंने डेबिट पार्टी नाम चुना है तो मेरा क्रेडिट यहाँ पे सेल्स लेजर या तो इनकम लेजर ही रखना पड़ेगा। मैं रिपीट करता हूँ, डेबिट मेरा कस्टमर नाम है तो यहाँ पे क्रेडिट सेल्स लेजर और या तो इनकम लेजर यही होगा, राइट। अभी आप पूछोगे शायद सर क्रेडिट में तो सीजीएसटी और एसजीएसटी भी आता है, तो वो क्यों नहीं दिखाई देते? क्योंकि सीजीएसटी और एसजीएसटी जो लेजर है या तो आईजीएसटी जो लेजर है, ये हमारे ड्यूटीज एंड टैक्सेस ये ग्रुप के अंदर हमने डिफाइन की है। इनका जो ग्रुपिंग है वो ड्यूटीज एंड टैक्सेस है, इस वजह से यहाँ पे हमें ये पर्टिकुलर ऑप्शन पे यहाँ पे दिखाई नहीं देता। सो मैं यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे सेल्स अकाउंट चूज कर रहा हूँ। ये विंडो तो आपको पता है, इसके बारे में और जानकारी आपको जीएसटी सेक्शन में मिलेगी। तो अभी ये गया, एक बार मैंने चूज किया। अभी फिर से अगर मैं दूसरा आइटम चूज करता हूँ, एफजी आइटम 2, एफजी आइटम 2 चूज करने के बाद यहाँ पे सपोज ये K222 बैच से मैंने फिर से 10 क्वांटिटी में सेल कर रहा हूँ, और मे बी आई नीड टू चेक द रेट, जस्ट मोमेंट। सपोज दिस इज माय 1250, सो I'll just try to sell it at 2000 rupees per number. So I'm just entering this 2000. Let me put it in the standard rate. Of course, I had explained you standard rate. ये स्टैंडर्ड रोड में यहाँ पे मैं क्यों डलवा रहा हूँ? क्योंकि बार बार अगर अभी मुझे जाके देखने की जरूरत नहीं कि मैंने सेल रेट क्या डिफाइन किया है, तो वो इवन दो आई डोंट सेव दिस एंट्री, इट विल ऑटोमेटिकली पिक अप फ्रॉम माय स्टैंडर्ड रेट। ओके, तो यहाँ पे मैंने डलवाया, तो देखिए ये फिर से मुझे सेल्स का लेजर पूछता है। तो ये अगर आप एक ही सेल्स लेजर आप दोनों आइटम, या तो एज्यूम कीजिए कि यहाँ पे आप एक इनवॉइस में दो नहीं 20 या 50 आइटम डलवा रहे हो। आई रिपीट माई वर्ड्स, एक ही इनवॉइस में आप 10 या 50 आइटम स्टॉक आइटम डलवा रहे हो, तो क्या 50 बार आप सेम सेल्स अकाउंट सेम सेल्स लेजर चूज करते रहोगे? जो हमने यहाँ पे किया, ये देखिए यहाँ पे जो हमने सेल्स लेजर चूज किया, ये आप बार बार 50 बार चूज करेंगे? नहीं। तो इसके लिए आपको ये ऑप्शन दिया गया हुआ है F12, यूज कॉमन लेजर अकाउंट फॉर आइटम एलोकेशन। तो ये करने से क्या होता है, आपका जो सेल्स लेजर है वो ऊपर आप एक ही बार चूज करते हो,
आप एक ही बार ये सेल्स लेजर चूज करके नीचे सिर्फ आप आइटम चूज करते जाते हो और आपको वो कोई भी सेल्स के रिलेटेड इंफॉर्मेशन फिर से पूछता नहीं। देखिए वो सीधा स्टॉक आइटम 2 पे गया, स्टॉक आइटम 2 से मैं निकल के आगे अमाउंट फील्ड पे गया, मुझे कोई भी सेल्स लेजर नहीं पूछ रहा है। सो दिस इज व्हाट इज द एडवांटेज यू गेट व्हेन यू यूज दिस ऑप्शन, यूज कॉमन लेजर अकाउंट फॉर आइटम एलोकेशन। ओके, ये कभी आपको यूज होता है अगर आप एक ही सेल्स लेजर को क्रेडिट करने वाले हो तो। अगर यहाँ पे मैंने मुझे दूसरा सेल्स लेजर चाहिए, दो सपोज आइटम 1 के लिए सेल्स अकाउंट चाहिए और आइटम 2 के लिए मुझे सेल्स एलजी प्रोडक्ट चाहिए, तो ये ऑप्शन मेरे लिए काम का नहीं है। तो फिर मुझे ये नो रखना ही बेहतर है कि जिसमें मैं डिफरेंट सेल्स लेजर चूज कर सकूं। तो ये आइटम के बाद जो मुझे अभी सेल्स लेजर दिखाई दे रहा है, यहाँ पे मैं अगर दूसरा चूज करना है तो हर एक आइटम के लिए मैं दूसरा चूज कर सकता हूँ। इसके लिए ये ऑप्शन है यूज कॉमन लेजर फॉर आइटम एलोकेशन, which you can say to yes or no according to your requirement। अगर मुझे यहाँ पे सेल्स एलजी प्रोडक्ट चूज करना है तो आई कैन डू दैट, राइट। So this is what is the best example I can give you of this particular option called use common ledger account for item allocation। Okay, so we will move ahead। ओके, आई टॉक्ड अबाउट वन मोर थिंग। यहाँ पे मुझे सेल्स लेजर और इनकम लेजर, यानी जो ये सेल्स अकाउंट है, ये देखिए सेल्स अकाउंट के ग्रुप के अंदर डिफाइंड है। सेम में हमारे जो अदर ग्रुप है, इनकम डायरेक्ट या इनकम, देखिए आप सेल बिजनेस में कभी भी सेल करते हो, आप दो तरीके से आप इनकम जनरेट कर सकते हो। व्हेन इट कम्स टू गुड सेल, सेल्स ऑफ गुड, यानी आप अगर कोई भी चीज बेच रहे हो तो वो आपका सेल्स लेजर में जाता है, सेल्स अकाउंट में जाता है। और अपनी सर्विसेज बेचना चाहते हो, यानी एज आई सेड, इफ आई एम अ प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट, आई एम चार्जिंग प्रोफेशनल फीस। इफ आई एम अ लॉयर, आई एम चार्जिंग माय प्रोफेशनल फीस, देन दैट शुड नॉट बी अ सेल्स, इट शुड बी इनकम। इसका ग्रुप क्या होना चाहिए? इनकम होना चाहिए। तो जो भी मेरी कंसल्टिंग चार्जेस है, दैट बिकम्स इनकम। So that is the reason I said, wherein Tally allows you to choose sales and income ledger। तो अगर हम ऑलरेडी हमने एक प्रोफेशनल चार्जेस करके एक लेजर हमने क्रिएट किया है। इफ यू रिमेंबर, आई जस्ट कम आउट ऑफ दिस एंट्री टू शो यू द डिफरेंस इन सेल्स एंड लेजर। अकाउंट्स इन्फो में, लेजर में ऑल्टर, अगर ये एक सेल्स था बताया मैं आपको, सेल्स, सेल्स एलजी प्रोडक्ट, सेल्स सैमसंग प्रोडक्ट, सेम वे प्रोफेशनल फीस के हमने कल दो लेजर बनाए थे, एक एक्सपेंस वाला लेजर यानी जो हम पे करते हैं वो, और ये प्रोफेशनल चार्जेस जो हम चार्ज करते हैं हमारे कस्टमर को, तो ये डायरेक्ट इनकम में है। तो आपके मन में शायद शायद ख्याल आएगा कि देखिए सेल्स लेजर तो वहां पे टेबल में दिखाई दे रही है, लेकिन ये पर्टिकुलर प्रोफेशनल फीस वहां पे क्यों नहीं दिखाई? तो इसका रीजन कोई आप मुझे दे पाओगे? जो भी पार्टिसिपेंट्स है यहाँ पे काफी वेल ट्रेन, या तो जो टैली अच्छी तरह से यूज करते हैं, ऐसे भी पार्टिसिपेंट्स है। तो कैन यू प्लीज आंसर मी क्वेश्चन, माय क्वेश्चन, लाइक यहाँ पे अगर मैं सेल्स की एंट्री कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं लेजर चूज कर रहा हूँ, और इसके बाद में आइटम चूज करने के बाद, ये सब क्वांटिटी वगैरह डालने के बाद, ओके, यहाँ पे मुझे सेल्स का विंडो बता रहा है। तो इस सेल्स के विंडो में मुझे प्रोफेशनल चार्जेस क्यों नहीं दिखाई दे रहे? कैन एनीबॉडी ऑफ यू एक्सप्लेन मी? आई थिंक इट्स वेरी सिंपल, द आंसर इज वेरी सिंपल। अगर आपने पूरा ध्यान से देखा रहेगा सभी सेशंस, पूरा फुल अटेंशन में आपने देख लेंगे, थोड़ी सी प्रैक्टिस की रहेगी, तो डेफिनेटली आपको ये आंसर आना ही चाहिए। I'll give you 15 seconds. If I don't get any response, I will explain what is the reason why professional charges is not displayed in this accounting allocation window। थोड़ा गौर से ध्यान दीजिए आपकी स्क्रीन पे, जो विंडो पे अभी मेरा बेसिकली कर्सर है, ये विंडो पे भी ध्यान दोगे आप, तो आपको उसका आंसर मिल जाएगा। Okay, I think time is up। What I'll do, I'll show you what is the reason। देखिए ये इंफॉर्मेशन छोटी छोटी जानकारी है, लेकिन ये देना क्यों जरूरी है? काफी समय यूजर कंफ्यूज होता है, मुझसे क्या क्या मिस्टेक हो रही है,
कि यहाँ पे मुझे वो पर्टिकुलर लेजर दिखाई नहीं दे रहा, राइट। तो इसके लिए मैं चाहता हूँ फिर से अकाउंट्स इन्फो, लेजर, ऑल्टर, आप ही कंपेयर कीजिए कि ये सेल्स लेजर में, ये सेल्स लेजर में और वो प्रोफेशनल चार्जेस लेजर में, एक बार सारे सेटिंग देख लीजिए तो आपको पता चलेगा यहाँ पे और उसमें क्या फर्क है। दूसरा बताता हूं मैं, प्रोफेशनल फीस। Is it products and services difference? No, actually, unfortunately not. Yes. So basically, if you remember when I was creating the ledger, accounting ledger, there is option called inventory values are affected. क्योंकि देखिए मैं जो चूज कर रहा हूँ that I am selecting a stock item, और स्टॉक आइटम में इन्वेंट्री जो भी अगर मैं लेजर के साथ कनेक्ट कर रहा हूं तो मेरी इन्वेंट्री वैल्यू कभी अफेक्ट होगी जब भी मैं इन्वेंट्री चूज कर रहा हूं, और सॉरी वो लेजर चूज कर रहा हूं और लेजर के साथ मैं इन्वेंट्री यानी स्टॉक आइटम लिंक कर रहा हूं तो ही वो मुझे दिखाई देगा। अगर यहाँ पे मैं इन्वेंट्री वैल्यू अफेक्ट ही नहीं कर रहा हूं तो वो मुझे स्टॉक आइटम सिलेक्ट करने के बाद भी वहां पे लेजर दिखाई ही नहीं देगा। तो अगर मैं यस करता हूं तो देखिए अभी हमें वो दिखना चाहिए। अगर नहीं दिखता है तो उसके लिए भी एक सेटिंग है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। ये देखिए यहाँ पे मैं स्टॉक आइटम में आया, स्टॉक आइटम में आके आई हैव चोजन माय गोडाउन, आई हैव एंटर्ड माय बैच नंबर, क्वांटिटी, रेट, एवरीथिंग हैज डिस्प्लेड, and then I am coming to the sales ledger. Now you can see there is a ledger called professional fees. Now even though it is grouped under direct incomes, it is displayed in my sales ledger allocation. Okay, I hope now this point is clear to you. How does it make difference in, because Tally is works in a controlled environment. It does not allow users to make mistake unless you do some F12 changes and you allow that to happen. So this is very simplest way, and that is what is the power of simplicity, what Tally has got. It is so flexible, it allows you to do certain changes and it allows you to do to work Tally as per your convenience, the way you want, right? I hope you are clear with this thing. So we will move ahead. I think we had seen all these rest of the options. Now, what was pending was the next F12, that's F12 advanced. Now in this F12 advanced, we have got the first option. Yeah, this was the option I was talking about. This was the option precisely I was talking about just now. Allow income accounts in sales voucher. Do you remember? I showed you a sales ledger, which is grouped under sales account, and I showed you a professional fees, which is grouped under income accounts. So if I set it no, अगर मैं यहाँ पे no set करता हूँ, तो even though inventory values are affected, but which will not get displayed here, the professional fees यहाँ से फिर से गायब हो गया। देख लिया आपने change? प्रोफेशनल फीस से गायब हो गया क्योंकि टैली डज नॉट वांट यू टू यूज आइटम इनवॉइस फॉर इनकम अकाउंट्स बेसिकली। बट कुछ लोगों की डिमांड, बेसिकली ये फीचर पहले नहीं था लेकिन बाद में टैली के पास काफी रिकमेंडेशंस पहुंचे, सर ये एटलीस्ट एक ऑप्शन के तौर पे आप हमें दीजिए तो ये हमारे लिए अच्छा रहेगा। जिसको यूज करना है वो यूज करेगा, जिसको नहीं यूज करना है वो नहीं यूज करेगा। और ये सोच के फिर टैली ने ये F12 के अंदर फिर से F12 है, देखिए एडवांस। आप अगर नीचे देखोगे ये जो बटन बार है, वर्टिकल बटन बार में हमारा एडवांस है, यहाँ पे ये ऑप्शन दिया हुआ है अलो इनकम अकाउंट इन सेल्स वाउचर एज यस, कंसोलिडेट स्टॉक आइटम विद सेम रेट्स। अभी इसका अगर आपको एक बेसिकली व्हाट वी नीड टू डू, इसके लिए हमें एक डिलीवरी नोट बनानी पड़ेगी। अभी डिलीवरी नोट का मैंने आपको एक कल एग्जांपल दिया था। डिलीवरी नोट फिर से मैं कहता हूँ, डिलीवरी नोट यानी डिलीवरी चालान। जब भी आप अपना गुड्स डिलीवरी चालान पे सेंड करते हो आपके कस्टमर के पास, तो उसके बेस के ऊपर वही आप डिलीवरी लिंक अपने सेल्स इनवॉइस में लिंक करते हो, राइट। मैं आपको अगर वो लेजर दिखाना चाहूँ, जैसे कि एलएम का ही हमने चूज किया था, और इसमें ये जो सेल्स अकाउंट है इसमें आप देखोगे तो हमने डिलीवरी नोट चूज किया था नंबर 1, और वो चूज करने से क्या हुआ, वो डिलीवरी नोट में जितना भी हमारा डिटेल हमने ऑलरेडी फिल कर चुके थे
वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली टैली ने पुल कर लिया, और पुल करने के बाद ये देखिए सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे आ गई। अभी अज्यूम कीजिए ये तो मैंने एक ही डिलीवरी नोट बनाया था, इसके लिए एक ही दिखाई दे रहा था। सपोज मैंने दो डिलीवरी नोट बनाया, और आपको मैं शायद बना के दिखाता हूँ तो आपको एग्जांपल क्लियर हो सकता है। ये कौन से 27 तारीख को मैंने बनाया है, तो मैं एक काम करता हूँ 26 तारीख में एक मैं डिलीवरी नोट बनाता हूँ। सॉरी, एक और एक चीज देखना भूल गया कि आइटम कौन सा था। ओके, FG1 था अपना। तो व्हाट आई डू, आई मेक inventory vouchers and I'll make a delivery note. Alt F8 is the command delivery note. देख लीजिए delivery note मैंने choose किया, मैं same customer choose करता हूँ, that is KLM customer private limited। यहाँ पे ऑर्डर नंबर मैंने बनाया ही नहीं तो नॉट एप्लीकेबल कहता हूँ, क्योंकि ये जस्ट एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं सेम आइटम चूज कर रहा हूँ, सेम आइटम चूज कर रहा हूँ, और इसको देखिए ट्रैकिंग नंबर 2 आ गया। सारा ये जो गेम है डिलीवरी नोट टू सेल्स इनवॉइस लिंकिंग का, ये सब ट्रैकिंग नंबर पे प्ले होता है। अगर यहाँ पे आपने गलती कर दी तो आपका दो बार स्टॉक डिडक्ट होगा। वो कैसे होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो ट्रैकिंग नंबर 2 उसने ऑटोमेटिकली ले लिया, ट्रैकिंग नंबर 1 ऑलरेडी बन चुका है, ऑर्डर नंबर नॉट एप्लीकेबल कहता हूँ, और यहाँ पे सपोज इसमें से मैं 10 नंबर बेचना चाहता हूँ, लेकिन रेट जो है ये मेरा अभी 1750 नहीं है, ये मेरा हो गया 1800 रुपया। सॉरी, यहाँ पे अभी मैं जो रेट है ये थोड़ा चेंज करके देता हूँ, क्योंकि पहले के जो डिलीवरी नोट पहले की जो हमारी बनी थी वो 1750 के रेट से बनी थी, अभी ये बन रही है 1800 के हिसाब से। तो 1800 के रेट से मैं ये सिर्फ रेट चेंज कर रहा हूँ, और यहाँ पे अपना CGST SGST अप्लाई करके आई एम जस्ट सेविंग द इनवॉइस, सो आई एम जस्ट एंटरिंग SGST। सो ये सॉरी नॉट इनवॉइस, इट्स अ डिलीवरी नोट, ये मैं डिलीवरी नोट सेव कर रहा हूँ। अभी अगर जाके डिस्प्ले में अकाउंट बुक्स में मेरा लेजर है जिनके नाम पे मैंने इनवॉइस बनाई है, KLM कस्टमर लिमिटेड, इनकी अगर यही इनवॉइस मुझे एडिट करनी है तो ये देखिए यहाँ पे पहले एक नंबर दिखाई दे रहा था, अभी कितने नंबर दिखाई दे रहे हैं? 2 दिखाई दे रहे। तो अगर हमारा एग्जांपल लेने के लिए मैं क्या करता हूँ, ये जो पर्टिकुलर इनवॉइस ऑलरेडी हम बना चुके, इसको मैं ऑप्शनल करके टैग करता हूँ। देखिए अभी आपको ऑप्शनल का यूज भी समझ में आएगा। ये ऑप्शनल टैग किया है, यहाँ पे देखिए ऑप्शनल आ गया, इसको मैं सेव करता हूँ। अभी क्या हो गया, ये जो इनवॉइस है मेरे सिस्टम से निकल गई, देखिए वो निकल गई यहाँ से। दिखाई दे रहा है आपको? नहीं, वो चली गई। तो मैं क्या करता हूँ, एक नया इनवॉइस बनाता हूँ। ये जो ऑप्शनल का हमने जो सेव किया है, ये हमारी इनवॉइस कहाँ पे सेव हुई है? डिस्प्ले में, एक्सेप्शन रिपोर्ट्स में, जो ऑप्शनल वाउचर्स करके एक ऑप्शन है, ये देखिए यहाँ पे मेरी सेव हुई है। सो विच हैज गॉन टू, यू कैन से इन नाउ टुडेज रेगुलर, you know very oftenly we use this word quarantine. So this invoice is quarantine now, it has gone to a separate room, it has gone to a separate register. Okay, so I'm going to make one more invoice. So maybe on 28th day I'll choose the same KLM customer private limited, और इसमें मैं क्या करता हूँ, डिलीवरी नंबर 1 चूज करता हूँ और डिलीवरी नंबर 2, ये दोनों मैंने चूज कर लिए। ये आपको मैंने एग्जांपल भी दिया था कि आपके घर पे अगर कोई मिल्क मैन है जो आपको डेली दूध डिलीवर करता है, अगर वो दूध डिलीवर करता है तो आपको वो हमेशा एक कोई चालान या किसके एक कार्ड के ऊपर फिलअप करता है कि इतना दूध डाल दिया, साइन कर लिया, और एंड में आपको इनवॉइस देता है। सेम ये एग्जाम्पल है, यहाँ पे मैंने 2 बार सप्लाई किया, 2 बार सप्लाई करने के बाद क्या हुआ है, मैंने वो इनवॉइस बना दी। अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या हो रहा है, स्टॉक आइटम एक ही है लेकिन वो 2 लाइन आइटम करके मुझे बता रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 डिफरेंट लाइन आइटम्स मुझे बता रहा है। इसका रीजन ये है क्योंकि मेरा रेट अलग है। एक को मैंने 1750 में बेचा था, दूसरा जो लॉट मैंने बेचा वो 1800 के रुपए में, 1800 की रुपए में, या तो ये रेट पे बेचा था। और दैट इज द रीजन टैली इज मेकिंग इट टू सेपरेट लाइन आइटम्स। और ये जो अभी हम ऑप्शन देख रहे थे, दिस ऑप्शन बिलोंग्स टू सेम थिंग, कंसोलिडेट स्टॉक आइटम विद सेम रेट्स। अगर आपको कंसोलिडेट करना है विद सेम रेट्स तो इसको यस करेंगे। सॉरी, बाय डिफॉल्ट वो डिफरेंट लाइन आइटम में जाएगा, लेकिन अगर उसका रेट अलग है, ओके, रेट सेम है, तो आपको एक ही इसमें चाहिए तो एक ही इसमें हम कर सकते हैं। अगर
अभी देखिए मैं वही जो डिलीवरी नोट है वो फिर से एडिट करता हूँ और इसका रेट सेम कर देता हूँ। इसका जो रेट मैंने 1800 किया था वो फिर से आई जस्ट मेक इट बैक टू 1750 1750। और अभी अगर मुझे इनवॉइस बनानी है इन्वेंट्री वाउचर्स में, F8 इज फॉर सेल्स, सेल्स मुंबई, एंड आई चूज KLM एज माय कस्टमर। यहाँ पे डिलीवरी नोट नंबर 1, डिलीवरी नोट नंबर 2, ये दोनों चूज कर लिए। ये देखिए अभी ये मिक्स करके दे रहा है मुझे। देख लिया डिफरेंस आपने? एक ही स्टॉक आइटम का रेट एक ही है, ओके, दो लॉट में भले हो गया हो, लेकिन देखिए ट्रैकिंग नंबर 1 और ट्रैकिंग नंबर 2 ये दोनों यहाँ पे आ चुके हैं। ओके, दिस इज व्हाट इज द डिफरेंस एंड दिस इज द मीनिंग ऑफ द F12 सेटिंग आई जस्ट शोड यू। अभी आपको मैंने एक बार एक चीज और मैंने अभी बताई थी थोड़ी देर में कि काफी सारे लोग ये ट्रैकिंग नंबर वाला जो फंडा है इसको काफी आई डोंट से मिस यूज करते हैं, लेकिन उनको समझ में नहीं आता इसको यूज कैसे करना है। तो they try to do the or they try to enter the they want or the knowledge they possess। तो ये अगर उनके तरीके से मैं करना चाहूँ तो इसका इफेक्ट क्या होगा मैं आपको बताऊंगा। अब ये ट्रैकिंग नंबर गलती से दो दो जो ऑटोमेटिकली आया था इसको मैंने नॉट एप्लीकेबल कर दिया। देखिए यहाँ पे 2 था, इसको मैंने नॉट एप्लीकेबल कर दिया और इसको मैं सेव करता हूँ। अभी इसका इफेक्ट क्या होने वाला है आप देख लीजिए। सेव कर लिया। अभी मैं जाता हूँ स्टॉक समरी पे। ये जो स्टॉक समरी का हमारा ऑप्शन है यहाँ पे आ गया, और जो हमारा फिनिश गुड्स का है इसमें मैं आ गया। ये FG1 था तो FG1 में एंटर किया, राइट। अभी क्या हुआ है देख लीजिए। ये जो हमने इनवॉइस बनाई थी, ये जो इनवॉइस बनाई थी इसमें जो डिलीवरी नोट था उसमें जो 10 क्वांटिटी था वो ऑलरेडी मेरा बिल हो चुका है। मैं क्या कहता हूँ 10 नंबर का क्वांटिटी था, 10 क्वांटिटी वो बिल हो चुका है और मेरे स्टॉक से रिड्यूस भी हो चुका है। ये देखिए 310 पहले का डिलीवरी नोट का 300 प्लस नए डिलीवरी नोट का 10 प्लस अभी टैली को इंफॉर्मेशन गलत गई है। उन्होंने जो डिलीवरी दूसरा जो पहले ऑलरेडी बना था और इसमें मैंने नॉट एप्लीकेबल कर दिया तो उसके साथ लिंक नहीं किया और ये 10 नंबर दोबारा उसने माइनस कर दिया, यानी इट हैज शोन इट इन आउटवर्ड्स कॉलम। तो 2 बार मेरा इन्वेंट्री डिडक्ट हुआ है। एक्चुअली बल्कि वो एक ही बार होना चाहिए था, लेकिन मैंने गलती क्या की, यूजर ने गलती क्या की कि ये जो भले मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया फाइन, ये सिलेक्शन क्या करता है, इट हेल्प्स मी टू पुल द डेटा फ्रॉम डिलीवरी नोट टू इनवॉइस। वो तो मेरा काम हो गया, लेकिन जैसे मैं स्टॉक आइटम में गया, स्टॉक आइटम में जाके गलती से मैंने इसको ट्रैकिंग नंबर को नॉट एप्लीकेबल कर दिया। एक्चुअली ये होना चाहिए था 2। इसको अगर मैं चूज करता हूँ देखिए अभी अपना जो करेक्शन था करना था वो करेक्शन हो जाएगा। देखिए इस तरीके से आई कैन करेक्ट माई थिंग्स विच आई हैव बाय मिस्टेकली एंटर्ड। अगर ऐसा कुछ होता है सो इस तरीके से मैं उसको करेक्ट कर सकता हूँ। सो प्लीज लर्न द कंसेप्ट ऑफ ट्रैकिंग नंबर केयरफुली। आप अच्छी तरह से ध्यान देके वो कस्टम कंसेप्ट को सीख लीजिए कि ट्रैकिंग नंबर कैसे वर्क करता है। वो आप सीख लोगे तो ये मिस्टेक्स कभी भी आपसे नहीं हो सकती। या तो अगर आपके कोई यूजर ने ये मिस्टेक की है तो आप डेफिनेटली यू विल बी इन अ पोजीशन टू clear that out and make it perfect, right? So I'll go back to my next option, that is sales Mumbai F12 के बाद फिर से F12 advance। ये अभी हमने जस्ट ऑप्शन देखा कंसोलिडेट स्टॉक आइटम विद सेम रेट्स, सेट स्टैंडर्ड सेलिंग लास्ट सोल्ड रेट फॉर नॉन प्राइस लिस्ट आइटम। अगर मैं कोई भी प्राइस लिस्ट आइटम की मतलब प्राइस लिस्ट में कोई आइटम की वैल्यू नहीं डाली है, रेट नहीं डाली है। प्राइस लिस्ट बेसिकली क्या होता है, जैसे मैंने आपको कहा एक रिटेल का प्राइस है, प्राइस लिस्ट है, एक होलसेलर का प्राइस लिस्ट है। इसमें मैं कहता हूँ कि FG स्टॉक आइटम 1 जो है हमारा, इसका रिटेलर को रेट है 2000 रुपया, होलसेलर को रेट है 1750 रुपया, राइट। और स्पेशल कस्टमर को शायद रेट है 1500 रुपया। सो ये मैंने डिफाइन किया है। लेकिन ये जो ऑप्शन क्या आपको पूछ रहा है कि सेट स्टैंडर्ड सेलिंग लास्ट सोल्ड रेट फॉर नॉन प्राइस लिस्ट आइटम, यानी अगर प्राइस लिस्ट में मैंने वो पर्टिकुलर जो आइटम है उस जो मैंने अब यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ उसका अगर रेट डिफाइन नहीं किया है तो शुड आई पिक अप द रेट फ्रॉम स्टैंडर्ड सेलिंग रेट और मे बी द लास्ट सेलिंग रेट, जो भी लास्ट मेरा इनवॉइस का सेल रेट था वो मैं पिकअप कर लूं, यस और नो।
आई होप दिस इज वेरी मच सेल्फ एक्सप्लेटरी। मुझे इसके लिए आपको एग्जांपल देने की मतलब इतना मैं ये नहीं इम्पोर्टेंट नहीं समझता कि इसके लिए फिर से हम एग्जांपल के तौर पे ये बताए कि ये कैसे वर्क होता है। आई होप यू अंडरस्टूड। In case not, and if you allow, if you suggest, then I can go and show you the example as well. But this is very much self-explanatory setting you have got कि अगर price list में वो item listed नहीं है तो क्या मैं पिछला जो भी उसका standard rate है, यहाँ पे हमने standard rate के बारे में भी देखा अभी just थोड़ी देर पहले मैंने आपको standard rate यहाँ पे डलवाया था for stock item 2 याद रहेगा तो देखिए ये जो standard rate हमने डलवाया था यहाँ पे ये जो 2000 का रेट है ये मैं पिकअप कर लूं क्या, ये आपको टैली क्वेश्चन पूछ रहा है। इफ यू हैव सेट इट यस देन टैली विल पिक अप दैट पर्टिकुलर रेट इन केस इट डज नॉट फाइंड दैट आइटम इन प्राइस लिस्ट। शो कंपाउंड यूनिट ऑफ आइटम बेस्ड ऑन रेट। आपको कंपाउंड यूनिट दिखना चाहिए क्या। अभी आपको मेरे ख्याल से अभी हम ऑलरेडी 8th सेशन पे है, आज हमारा 8वां सेशन है। यहाँ तक तो आपने डेफिनेटली सीखा है कि ये सिंपल यूनिट और कंपाउंड यूनिट क्या होता है, राइट। कंपाउंड यूनिट के मैंने आपको एग्जांपल भी बताया है, पैक ऑफ 6 नंबर्स, बॉक्स ऑफ पैक ऑफ 10 नंबर्स एंड बॉक्स ऑफ 6 पैक्स, राइट। ये मेरा कंपाउंड यूनिट हो गया, यानी कार्टन ऑफ 6 बॉक्सेस। तो एक कार्टन में मेरे 10 into 6 यानी 60 यूनिट बैठ सकते हैं। So this is what is the compound unit. So do you want compound unit of item based on rate? वो rate के लिए आपको compound unit चाहिए क्या, आप वो सेट करना चाहते हो तो you can set this option as yes. अगर मैं इसको yes करता हूँ तो जो भी अपना compound unit वाला item है, ये देखिए ये है stock raw material 3। रॉ मटेरियल 3 में आप यहाँ पे जो रेट है वो देखिए ये क्या गया, जो हमारा कंपाउंड यूनिट का रेट था वो यहाँ पे पिकअप हो गया। बेसिकली ये ऑलरेडी हमारा कंपाउंड यूनिट हमने चूज किया है ये पर्टिकुलर आइटम के लिए, तो वही हिसाब से अपना देखिए बॉक्स ऑफ 10 नंबर्स हमने यहाँ पे दिया है तो वो रेट से हमारा चूज हो रहा है, राइट। I hope you are clear with the units, stock item simple unit and stock item compound units. F12, F12. So it shows you basically shows compound unit on of item based on rate, right? Show full details of compound unit. अगर आप यहाँ पे show full details करते हो, sorry मैंने वो entry save नहीं की, थोड़ी सी गलती होगी। Just choose it once again. This box, maybe 300 रुपया। Sales account. यहाँ पे actually display नहीं कर रहा है, even though I have set it. Show compound unit of item based on rate and show full details of compound unit. Yes, I think this is again linked to the pricing, and that is the reason it is not showing. Basically, in case I'm using the price list and I'm using compound unit for that, and as of now I have not chosen any price list here, and that is the reason it is not showing me the detail of it. Otherwise, if you see it is showing me the alternate unit जो भी है इसका 10 बॉक्स यानी 5 kg, वो मुझे वो बताई दे रहा है। ये जो था यहाँ पे हमने यूनिट का जो कंपैरिजन लिखा था 1 kg में कितने नंबर है, तो 1 kg में 20 है, तो मैं अगर 10 बॉक्स बेच रहा हूँ तो मेरा वो 5 kg बन रहा है। ये इंफॉर्मेशन तो मुझे मिल रही है, लेकिन ये जो पर्टिकुलर है शो कंपाउंड यूनिट या तो फुल डिटेल, बेसिकली इट इज नॉट, दैट इज व्हाट द रीजन आई कैन गिव कि यहाँ पे हमने प्राइस लिस्ट के साथ वहां पे कंपाउंड यूनिट या तो वो पर्टिकुलर आइटम नहीं डलवाया है, एंड पॉसिबली दैट इज रीजन वो मुझे वहां पे नहीं दिखाई दे रहा है। Now the next option, use pre-closure order detail. अब ये pre-closure order क्या होता है? सबसे पहले तो आपको pre-closure का कंसेप्ट समझ में लेना पड़ेगा, क्योंकि pre-closure हमें वैसे भी हमें ऑर्डर वाउचर्स में देखना ही है कि आप pre-closure क्या होता है। तो pre-closure यानी क्या, अगर मैंने कोई भी ऑर्डर डलवाई है, whether it is a purchase order or it is a sales order. For this example, we'll take an example of, for this matter, we'll take an example of sales order.
अगर मैं कोई सेल्स ऑर्डर बना रहा हूँ कस्टमर के लिए, ओके, सपोज मैंने या तो या 25 ऑर्डर लेते, 25 ऑर्डर बनाई है कस्टमर के लिए। मैं कहता हूँ कि मुझे ये पर्टिकुलर एक्स जो आइटम है, या तो रॉ मटेरियल वन जो आइटम है, इसका मुझे आप 100 kg का सप्लाई दे दो, या तो 1000 kg का सप्लाई कर दो। 1000 kg के लिए मैंने परचेस ऑर्डर दे दिया। अभी जो मेरा सप्लायर है उसने मैन्युफैक्चर भी कर लिया। मैन्युफैक्चर करते वक्त उसने थोड़ी बहुत ज्यादा क्वांटिटी ले ली, क्योंकि शायद डैमेज और कभी कभी इवेपोरेशन भी होता है अगर केमिकल है तो इन दैट केस उसने थोड़ा क्वांटिटी ज्यादा बना ली। सो सपोज 1015 या 1020 kg ऐसे इस तरह से उसने बनाई, और जो सिर्फ हमारे यूज के लिए ही आ सकता है। ही कैनॉट सेल इट टू समवन एल्स, वो स्पेशली हमारे लिए वो आइटम बना रहा है, राइट। लेकिन आप ये सोचिए कि उसका थोड़ा लॉस ज्यादा हो गया। अभी इंस्टेड ऑफ 1000 he was able to manufacture only 990 kg, उसने सिर्फ 990 kg का ही प्रोडक्शन किया, एंड ही हैज सप्लाइड अस दैट मटेरियल। 990 kg का जो मटेरियल सप्लाई किया है, तो अभी क्या होता है, मैं क्वांटिटी में लिखता हूँ रिसीव्ड क्वांटिटी 990, परचेस ऑर्डर क्वांटिटी वाज 1000, तो 10 kg का जो डिफरेंस आ गया है, वो एनीवे हमें वो तो फिर से सप्लाई नहीं करने वाला सप्लायर, क्योंकि क्या, उसका जो बैच साइज है इट इज मिनिमम 100 kg, 100 kg है तो ही वो बनाएगा, या तो ही वो हमें स्पेशली बना के दे सकता है। लेकिन 10 kg इज नॉट वायबल फॉर हिम, इज नॉट फिजिबल फॉर हिम, क्योंकि उसका कॉस्टिंग में बैठेगा ही नहीं। तो व्हाट दे यूजुअली डू, प्लीज प्री क्लोज दैट ऑर्डर, ओके। यानी वो जो ऑर्डर है आपके, इसमें क्वांटिटी 10 बची हुई है, वो आप प्री क्लोज कर दो। और ये एनी इवन सप्लायर एंड कस्टमर अंडरस्टैंड, दैट इज माइनर, शायद उनके टर्म्स में भी लिखा रहता है कि माइनर डिफरेंस हैज टू बी एडजस्टेड, या तो उसके माइनर डिफरेंस के लिए आपका पॉलिसी क्या रहेगा वो ऑलरेडी डिफाइंड रहता है। सो यू कैन प्री क्लोज दैट क्वांटिटी। जो 10 यूनिट है, 10 kg है, वो एनीवे आप मैन्युफैक्चर करके आप बेचने वाले नहीं हो, या तो सॉरी अपना आपका सप्लायर आपको देने वाला नहीं है, तो यू कैन प्री क्लोज दैट ऑर्डर एंड यू हैव गॉट अ प्री क्लोज ऑप्शन। और ये जो ऑप्शन है प्री क्लोजर ऑर्डर डिटेल, अगर आपको आप दिखाना चाहते हो आपके इनवॉइस में यहाँ पे आपके स्क्रीन पे, तो ये ऑप्शन आप यस सेट कर सकते हो, तो आपको प्री क्लोजर के डिटेल्स भी दिखाई देंगे। यूज डिफॉल्ट वैल्यूज फॉर बैंक डिटेल्स। अभी बैंक डिटेल्स का जो बेसिकली डिफॉल्ट, बेसिकली इनवॉइस में तो ये एप्लीकेबल नहीं होगा, लेकिन यस, या सॉरी, ये इनवॉइस में, हाँ, ये एप्लीकेबल कहाँ पे होगा कि आप जो अभी ये सेल्स इनवॉइस बनाए थे सेल्स मुंबई, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने डिफॉल्ट बैंक चूज किया था। ये डिफॉल्ट बैंक था, सपोज आईडीबीआई बैंक चूज किया है। तो ये डिफॉल्ट बैंक क्यों हम यहाँ पे चूज करते हैं, डिफॉल्ट बैंक इसके लिए चूज करते हैं क्योंकि जो अपने बैंक डिटेल्स है, आप अपने इनवॉइस में इंस्ट्रक्शन लिखते हो, प्लीज ट्रांसफर द अमाउंट टू टू फॉलोइंग बैंक डिटेल्स। मे बी आप बैंक डिटेल में आपका बैंक अकाउंट नंबर लिखते हैं, बैंक टाइप लिखते हो, उसका आईएफएससी या एनईएफटी कोड लिखते हो, एंड व्हाट योर कस्टमर डज, he just register that particular information in his bank account, जो नेट बैंकिंग में जाके वहां पर रजिस्टर करता है, एंड देन ही मेक्स द नेट ट्रांसफर। और उसके लिए आप ये यहाँ पे बैंक डिटेल्स डिफाइन कर सकते हो, और उसका जो डिफॉल्ट वैल्यू जो है, जो भी हमने आईडीबीआई बैंक दिया है, वो आपको लेना है क्या, यूज करना है क्या, वही आपको इंफॉर्मेशन पूछ रहा है। प्रोवाइड एक्सपोर्ट शिपिंग डिटेल्स, अगर आप यस करते हो, तीनों ऑप्शन में यस करता हूं, एक्सपोर्ट शिपिंग डिटेल, मार्क्स कंटेनर डिटेल, और नंबर एंड काइंड ऑफ पैकेजेस। तो बेसिकली अगेन ये तो थोड़े बहुत सेल्फ एक्सप्लेनेटरी ही ऑप्शंस है। ऊपर का आप हेडिंग देखोगे तो एक्सपोर्टर्स ऑप्शन है। एक्सपोर्टर क्या, अगर आप कोई भी मटेरियल एक्सपोर्ट कर रहे हो इंडिया से लेके आप यूएस, यूके, यूएई, या तो और किसी कंट्री में, ऑस्ट्रेलिया, कहाँ भी एक्सपोर्ट कर रहे हो यहाँ से, तो आपको शिपिंग डिटेल्स आपको डिफाइन करना जरूरी है। मार्क्स एंड कंटेनर्स नंबर, यानी कंटेनर नंबर और उसका जो मार्क होता है, ये आपको डिफाइन करना पड़ता है आपके इनवॉइस में कि कौन से कंटेनर्स में गया है, या तो वेसल वगैरह, वेसल इंफॉर्मेशन हो गया। नंबर एंड काइंड ऑफ पैकेज, उसका पैकिंग आपने कैसे किया है, शायद जैसे एक कार्टन में, जैसे मैं कहा कि 6 बॉक्स, तो बॉक्स ऑफ और मे बी 10 कार्टन है, या तो 100 कार्टन है, जो भी आपका पैकिंग डिटेल है, ये आपको डिफाइन करने के लिए ऑप्शन मिल जाएगा। अगर ये ऑप्शन में यस सेट करता हो तो कंट्रोल ए करके मैं इसको सेव करता हूँ,
ये देखिए आपके लिए यहाँ पे जो एक्सपोर्टर इंफॉर्मेशन है यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। अभी जो सप्लीमेंट्री डिटेल की मैं बात कर रहा था, यहाँ पे देखिए प्लेस ऑफ रिसिप्ट बाय शिपर, यानी ये जो आप शिपर है, ये प्लेस ऑफ रिसिप्ट बाय शिपर, हाँ मतलब बेसिकली वो शिपर जो है वो कहाँ पे वो मटेरियल रिसीव कर रहा है, वो सपोज से मुंबई जेएनपीटी है व्हाटएवर, और ये है वेसल फ्लाइट नंबर, जो भी आपका वेसल नंबर है वो, पोर्ट ऑफ लोडिंग फॉर एग्जांपल जेएनपीटी है, एंड पोर्ट ऑफ डिस्चार्ज मे बी आई विल से इट इज दुबई, एंड कंट्री टू यूएई, अगर ये यूएई में जाना है तो वहां की डिटेल मैंने स्पेसिफाई कर लिए। यहाँ पे देखिए आपके मार्क्स एंड कंटेनर्स नंबर है, मार्क्स ए एक्स, ये ऐसा कुछ मार्क्स का मैंने कोडिंग दे दिया है यहाँ पे, एंड देन नंबर ऑफ पैकेजेस, जैसे मैंने कहा कि 100 नंबर है या तो 10 नंबर है, जो भी है आप लिखना चाहते हो वो आप लिख सकते हो। और फिर यहाँ पे जब आप प्रिंट कमांड दोगे, देखिए तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपकी प्रिंट होने वाली है यहाँ पे। vessel flight number, place of receipt by shipper, quantity, sorry, city port of loading, city port of discharge, और ये देखिए मार्क्स एंड कंटेनर्स नंबर का कॉलम यहाँ पे आ गया है, नंबर एंड काइंड ऑफ पैकेजेस का कॉलम यहाँ पे आ गया है। सो इस तरीके से आपकी एक्सपोर्टर इंफॉर्मेशन है आप इसमें स्पेसिफाई कर सकते हो। दिस इज व्हाट वी कॉल एज अ एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट या तो एक्सपोर्ट इनवॉइस। वेरी सिंपल, आई मीन नथिंग मच टू बी एक्सप्लेन्ड इन दिस। शो टर्न ओवर अचीव्ड विद द कस्टमर, ये टर्न ओवर अचीव्ड यानी क्या है, यहाँ पे आप करंट बैलेंस देख रहे हो, देख रहे हैं मेरा कर्सर कहाँ पे मूव हो रहा है, ये आपका है करंट बैलेंस, यानी आपके कस्टमर के साथ आप आज तक का करंट बैलेंस कितना है, यानी क्लोजिंग बैलेंस कितना है। अगर आप इसमें इसको ये ऑप्शन भी यस करते हो, टर्न ओवर यानी आज तक इनके सेल कितना किया है, तो ये आपको टर्न ओवर भी दिखाएगा कि आज तक इनके साथ आपने कितना सेल किया हुआ है, क्योंकि अभी तक उन्होंने मेरे ख्याल से कुछ भी पेमेंट नहीं किया, इसके लिए करंट बैलेंस भी वही दिख रहा है और आपका टर्न ओवर भी वही दिख रहा है। इसके बाद में अलो मॉडिफिकेशन ऑफ ऑल फील्ड्स ड्यूरिंग एंट्री, ये जो कुछ फील्ड स्किप हो रहे हैं या तो कुछ फील्ड शायद फॉर सम रीजन आर नॉट अलाउड टू बी एडिटेड, तो डू यू वांट मॉडिफिकेशन इन ऑल फील्ड्स, आप अगर यस कहते हो तो वो मॉडिफिकेशन के लिए आपको ऑप्शन दे देगा, राइट। यानी बेस्ट एग्जांपल इज व्हेन आई सिलेक्ट द डिलीवरी नोड, अगर डिलीवरी नोड चूज करता हो तो उसके रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है, तो काफी सारी इंफॉर्मेशन, माय कर्सर डजंट मूव ऑन टू दैट फील्ड, सो डू यू वांट एडिटिंग ऑफ दोस फील्ड्स, देन यू कैन सेट इट टू यस। allow use of expired batches for all stock item, अभी ये सबसे maybe I can say it could be a dangerous command as well here, or dangerous option here, फॉर द रीजन, ये आपको क्या कह रहा है कि डू यू वांट मी टू अलो एक्सपायर्ड बैचेस फॉर ऑल स्टॉक आइटम, अगर मेरी कोई बैच एक्सपायर हुई है, देखिए मैंने आपको बैच का कंसेप्ट सिखाया था कि स्टॉक आइटम बनाते हैं तो उसको आप बैच, अगर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, फूड इंडस्ट्री है, तो आपको बैच नंबर और बैच के साथ उसका मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट आपको सेट करना होता है। अगर आप वो सेट कर रहे हो और जब भी आप कोई भी बिलिंग कर रहे हो, तो जो भी अनएक्सपायर्ड बैचेस है वही आपको सिलेक्शन के लिए आते हैं। आई रिपीट माय वर्ड्स, जो भी अनएक्सपायर्ड यानी जो करंट रनिंग बैचेस है वही आपको सिलेक्शन में आते हैं स्टॉक आइटम चूज करते हो तो यहाँ पे अगर ये ऑप्शन यस करते हो, अलो यूज ऑफ एक्सपायर्ड बैचेस एज वेल फॉर स्टॉक आइटम, सेल के लिए एक्सपायर्ड बैचेस भी दे दो, तो आपको ये यस ऑप्शन करके टैली विल अलो यू टू सेल एक्सपायर्ड बैच एज वेल। शो बैचेस विद जीरो क्वांटिटी, अभी क्या हो रहा है कि जो मेरे बैचेस ऑलरेडी खत्म हो चुके हैं, मतलब जिसमें जितना क्वांटिटी था वो सब बिक चुका है, तो जिसका जो बैलेंस है वो जीरो हो चुका है, डू यू वांट दोस बैचेस टू बी डिस्प्लेड इन योर टेबल, जो आपको ये टेबल दिखाई दे रहा है, मैं आपको एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे बताऊं तो ये अगर मैं एफजी आइटम चूज करता हूँ, तो ये देखिए यहाँ पे मेरा बैच नंबर दिखाई देता है, अभी इसमें बैलेंस है तो दिखाई दे रहा है, ठीक है, लेकिन जिसका बैलेंस जीरो है वो भी आपको दिखाई देना चाहिए या नहीं चाहिए, वो आपको पर्टिकुलर ऑप्शन जो हमने अभी देखा वो आपको अलो करेगा टू शो ऑल बैलेंस बैचेस विद जीरो क्वांटिटी एज वेल।
एक्टिवेट कैश ट्रेड डिस्काउंट। अभी ये कैश ट्रेड डिस्काउंट का कंसेप्ट एक थोड़ा अलग है। इसको मैं एक्टिवेट करता हूँ तो आपको अगर इन केस एडिशनल कैश ट्रेड डिस्काउंट यहाँ पे देना है तो आप यू डिफाइन कर सकते हो। और वो डिफाइन करने के लिए सबसे पहले तो मतलब नॉर्मल डिस्काउंट जो होता है वो तो होता ही है। एक सेकेंड, आई विल गो बैक टू माय, ये जो एफजी स्टॉक आइटम इसको मैं फिर से चूज करता हूँ। इसमें अगर मैं क्वांटिटी ले लिया 100 केजी, 100 नंबर सॉरी, यहाँ पे मैंने एक ट्रेड डिस्काउंट या तो कैश ट्रेड डिस्काउंट का एक लेजर बना लिया। ये डिस्काउंट का लेजर बना के बाद इसको मैंने सेल्स के अंदर ही ग्रुप कर दिया। और अभी आप देखेंगे यहाँ पे नीचे टाइप ऑफ लेजर पूछ रहा है। मेरा कर्सर जहां पे है उसके नीचे मुझे टाइप ऑफ लेजर पूछ रहा है, तो वो पूछ रहा है ये डिस्काउंट लेजर है क्या। एक तो इनवॉइस राउटिंग हो गया या तो डिस्काउंट। मैं तो कहता हूँ यस, दिस इज अ डिस्काउंट लेजर। एक मिनट में और एक आइटम चूज करता हूँ यहाँ पे। सेल्स अकाउंट है, वन 1864.41 सेव करता हूँ क्योंकि ये कंसेप्ट काफी पुराना हो चुका है शायद इस वजह से। स्टॉक आइटम F12, I want to see the rate as well, so I'm just making yes. I think cash and trade discount का थोड़ा explanation अलग है। I need to, I'll get back to on this thing because we used to use this, but somehow I think it's not matching what I'm just trying to do. Cash and trade discount है ये, deactivate cash and trade discount. Anyway, I think I'll explain you, I'll provide you explanation maybe in tomorrow's session. I'll just go through it again once again and why it's not displayed. So anyway, this way we have finished the F12 settings of my sales invoice. Sales invoice का जो भी F12 का configuration था यहाँ पे हम finish कर चुके हैं. This was all related to screen information. जैसे मैंने कहा अभी भी अपना F12 setting बाकी है print related. ये काफी it's very time consuming topic. Sales invoice जो है अपना, it itself, it's a, because this is again a very important topic as well, and that's the reason it is time consuming. I'm just entering CGST, so it should not warn me again and again for, so XGST enter कर लिया, मैं ये इनवॉइस को सेव कर लेता हूँ। सेव करने के बाद मैं अगर प्रिंट कमांड देता हूँ, I'll repeat, when I provide a print command, तो प्रिंट कमांड करने देने के बाद मुझे कौन से ऑप्शन यहाँ पे आ रहे हैं। प्रिंट लैंग्वेज, आपको कौन से लैंग्वेज में प्रिंट करना है। ऑफ कोर्स जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे लैंग्वेज की लाइब्रेरी अपडेटेड नहीं है, शायद फॉर दैट रीजन वी कैन प्रिंट इट इन इंग्लिश ओनली, राइट। सो इंग्लिश वो तो सेट ही है। प्रीव्यू, अभी ये देखिए अगर मैं यहाँ पे यस करता हूँ तो मुझे प्रीव्यू दिखाई देता है। मैंने प्रीव्यू के बारे में कहा भी, जूम करना है तो ऑल्ट जेड करके आप जूम कर सकते हो, और फर्दर जूम करना है जूम इन तो प्लस या माइनस की से जूम इन जूम आउट करते हो आप। ये हो गया आपका ऑप्शन। बाद में फिर से प्रिंट कमांड देके टाइटलिंग क्या चाहिए, अगर मुझे टाइटलिंग चेंज करना है तो यू कैन मेक टाइटलिंग डिफरेंट देन द वे यू वांट। मे बी आई से
just invoice if I want, so I can change the titling. Print with company name, yes, अगर आपको कंपनी नेम के साथ प्रिंट करना है तो yes. प्रिंट विथ कंपनी एड्रेस, नो, शायद ये ऑप्शन मैंने बताया था। ये देखिए नो करने के बाद क्या हो गया, मेरा सिर्फ कंपनी का नाम आ रहा है लेकिन कंपनी का एड्रेस आ रहा है नहीं, वो चला गया। तो इसके लिए ये जो ऑप्शन है, अगर आपको कभी भी इस तरीके से दिक्कत हो जाए कि वहां पे दिखाई तो दे रहा है, कंपनी का नाम दिखाई दे रहा है लेकिन समहाउ मेरा एड्रेस प्रिंट नहीं कर रहा है, तो यू कैन ऑलवेज गो टू टाइटलिंग एंड यू कैन से प्रिंट विद कंपनी एड्रेस। यस, कंपनी एड्रेस प्रिंट करना है तो कौन सा एड्रेस पे प्रिंट करना है, प्राइमरी या सेकेंडरी, तो आप जो भी चूज करेंगे वो एड्रेस वहां पे प्रिंट होने वाला है। आपको कंपनी का सीआई नंबर प्रिंट करना है क्या, यस, तो यस। प्रिंट विद कंपनी फोन नंबर, यस। किम प्रिंट विद कंपनी एड्रेस, यस। प्रिंट डेट एंड रेंज ऑफ रिपोर्ट, प्रिंट पेज नंबर इन रिपोर्ट, यस करेंगे तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपकी यहाँ पे प्रिंट होने वाली है। Right, this was the print configuration, not the print configuration exactly, but after provide print command, जो जो बटन यहाँ पे हमें आ रहे हैं वो हमें दिखाई दे रहा है। पेज नंबर, अभी क्या होता है मेरे ख्याल से इनवॉइस में यूजुअली ऑप्शन नहीं यूज में आएगा, अनलेस एंड अनटिल योर इनवॉइस इज मल्टी पेज, यानी आपकी एक इनवॉइस अगर आप 5 पेजेस में प्रिंट कर रहे हो तो शायद ये ऑप्शन आपको काम में आ सकता है। अभी इमेजिन कीजिए, अजम कीजिए आपने एक 5 पन्नों वाली इनवॉइस प्रिंट दे दी। आपके 5 पन्नों वाली इनवॉइस प्रिंट देने के बाद क्या हुआ कि जो 5वां नंबर या तो इसे तीसरा नंबर, बीच में का नंबर लेते, तीसरे नंबर से आपका जो मतलब पहले 2 पन्ने परफेक्टली प्रिंट हो गए, 3, 4, 5 जो है आपकी मे बी आपका टोनर खत्म होने की वजह से उसमें आधा अधूरा प्रिंट आ गया है, जो प्रिंट था वो क्लियर नहीं आया है। तो आप क्या करना चाहोगे, फिर से 1, 2, 3, 4, 5 पूरे 5 पन्ने प्रिंट करोगे, नहीं, आपको तीसरे पन्ने से फिर से प्रिंट करना है। तो व्हाट यू कैन डिफाइन, पेज नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1, यस, 1 से चालू होता है, लेकिन कौन से पेज से लेके कहां तक प्रिंट करना है वो आप यहाँ पे डिफाइन कीजिए कि मुझे तीसरे नंबर से लेके सारे बाकी बचे हुए प्रिंट करना है, तो इट विल प्रिंट इट फ्रॉम नंबर 3 टू रेस्ट ऑफ द पेजेस। आई होप यू अंडरस्टूड द कंसेप्ट ऑफ पेज नंबर्स। ये देखिए पेज नंबर यहाँ पे है और ये सारे रिपोर्टिंग में एप्लीकेबल है। ये जो फीचर है आपको सिर्फ इनवॉइस में भी नहीं, लेकिन आप लेजर रिपोर्ट कहिए या तो कोई भी और आपका रिपोर्ट कहिए, उसमें ये आपको एप्लीकेबल होगा, राइट। सो दिस इज द वे यू कैन यूज फॉर इन बिटवीन प्रिंटिंग। अगर आपका प्रिंटिंग स्टॉप होता है कहाँ पे तो आप वही से शुरुआत कर सकते हो, यहाँ पे पेज नंबर डिफाइन करके। प्री प्रिंटेड, अभी काफी बार ना हमें कंप्लेंट्स आती है, ये देखिए यहाँ पे जैसे मैंने प्लेन पेपर और प्री प्रिंटेड, ये बाय डिफॉल्ट प्लेन पेपर रहता है, यानी सॉरी प्लेन पेपर रहता, तो ये देखिए प्रिंट फॉर्मेट नीट मोड दिखाई दे रहा है, आप देख पा रहे हो स्क्रीन पे नीट मोड, और यहाँ पे मैं प्रिंट फॉर्मेट अगर प्री प्रिंटेड कर लूं तो नीट मोड ऑन प्री प्रिंटेड पेपर। ये तो काफी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि यानी कि मेरा ऑलरेडी प्री प्रिंटेड पेपर है, मेरा डिजाइन जो इनवॉइस का है ऑलरेडी मैंने प्रिंट कर चुका हूं, मुझे सिर्फ डिटेल प्रिंट करना है। तो अगर मैं यस करता हूं, आई एम सो सॉरी, माय विथ प्रीव्यू, या आई वांट इट विथ प्रीव्यू। ये देखिए क्या डिफरेंस देख रहे हैं अभी इनवॉइस में आप, क्या डिफरेंस देख रहे हैं, मेरी जितनी बॉर्डर्स थी वो चली गई, मेरे इनवॉइस में जो जो बॉर्डर्स थी चली गई। तो अभी कभी कभार हमें कॉल्स आते हैं, सर मेरा इनवॉइस एकदम अच्छी तरह से प्रिंट हो रहा था, आज अचानक से क्या हो गया पता नहीं कि वो कुछ अजीब तरह से प्रिंट कर रहा है। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि अजीब क्या हुआ है इनवॉइस में, लेकिन कुछ तो अजीब हुआ है, वो कुछ बता नहीं रहे, कुछ इंफॉर्मेशन यहाँ वहाँ बिखर गया। सो दिस इज द रीजन, बेसिकली इट डजंट प्रिंट द बॉर्डर्स। और ये ऑप्शन टैली ने क्यों दिया था, क्योंकि जैसे मैंने आपको कल भी कह चुका हूँ ये बात कि पहले लेजर प्रिंटर्स यूज नहीं होते थे और डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर यूज होते थे, और डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में अगर आपको लाइन या बॉर्डर्स प्रिंट करने हैं तो एक तो टाइम भी ज्यादा कंज्यूम करता था फर्स्ट ऑफ ऑल, सेकेंडली वो आपका प्रिंटर का जो हेड था वो जल्दी खराब होने के चांसेस ज्यादा थे। इसके लिए काफी सारे जो बिजनेसमैन थे वो क्या करते थे, ये जो बॉर्डर्स है ऑलरेडी अपने प्रिंटर से प्रिंट करके लेके ब्लैंक इनवॉइस वहां पे रखते थे, और ये जो बाकी का डिटेल है वो एग्जैक्टली वो प्लेस में प्रिंट होता था। इसके लिए प्री प्रिंटेड का ऑप्शन हमने यहाँ पे आपको दिया है, प्री प्रिंटेड और प्लेन पेपर। आप प्लेन पेपर करोगे तो आपका बॉर्डर के समेत सब प्रिंट होगा, आप
प्री प्रिंटेड कहोगे तो वो बॉर्डर्स वगैरह प्रिंट नहीं होगा। कॉपीज, अभी कॉपीज में क्या होता है, अभी तो कॉपीज का कंसेप्ट बहुत कम हो गया, नहीं तो पहले ऑलमोस्ट 5 कॉपीज प्रिंट करने पड़ते थे इनवॉइस के, जैसे ओरिजिनल फॉर बायर, सेकेंड कॉपी फॉर ट्रांसपोर्टर, थर्ड कॉपी फॉर सेलर, फोर्थ कॉपी फॉर स्टोर डिपार्टमेंट, फिफ्थ कॉपी फॉर परचेज डिपार्टमेंट। ये सारे काफी सारे डिपार्टमेंट्स के लिए अलग अलग कॉपीज प्रिंट होते थे। तो अगर अपने यहाँ पे दे दिया मुझे 3 कॉपी चाहिए, ओके 3 कॉपी चाहिए और सभी कॉपी प्रिंट करना है, तो देखिए क्या फर्क होता है। ये भी मैं प्रिंट करता हूँ, ये हो गया मेरा पहला कॉपी, देखिए ओरिजिनल फॉर रिसिपिएंट, राइट, ओरिजिनल फॉर रिसिपिएंट। इसके बाद में ये भी पेज डाउन करता हूँ, या तो मैं एरो की दबाता हूँ, एरो की दबा के मैं नीचे के पेज पे आ गया, जूम करता हूँ, डुप्लीकेट फॉर ट्रांसपोर्टर, देखिए डुप्लीकेट फॉर ट्रांसपोर्टर, थर्ड ट्रिप्लीकेट फॉर सप्लायर। सो दिस इज द वे इट प्रिंट्स द कॉपी डिटेल। वो कॉपी किसके लिए यूज होगा ये डिटेल यहाँ पे प्रिंट होता है, अगर आप नंबर ऑफ कॉपीज यहाँ पे स्पेसिफाई करते हो तो कॉपीज। और बाद में ऑप्शन आता है सिलेक्ट प्रिंटर, आपको कौन से प्रिंटर पे वो प्रिंट करना है। एक तो ये देखिए पीडीएफ, मैंने एक पीडीएफ फॉर्मेट का एक प्रिंटर यहाँ पे ऑलरेडी इंस्टॉल किया है, तो इन केस आई वांट टू प्रिंट एनी इंफॉर्मेशन इन पीडीएफ, आई कैन गिव कमांड ऑफ दिस पर्टिकुलर पीडीएफ प्रिंटर। अगर मुझे मेरे ऑफिस में एचपी प्रिंटर है, यहाँ पे मुझे कराना है, तो आई कैन जस्ट गिव सिलेक्ट दिस प्रिंटर। या तो बाकी अगर और कोई प्रिंटर्स आपके यहाँ पे इंस्टॉल्ड है तो आपको दिखाएंगे ऑफलाइन है ऑनलाइन है, एंड यू कैन अकॉर्डिंगली यूज दैट प्रिंटर। सो बेसिकली इट्स अ सिंपल कमांड, कौन सा प्रिंटर आपको यूज करना है। लेकिन इसके अंदर आप जाओगे, सेकेंड, इसके अंदर आप जाओगे तो यहाँ पे फिर आपको प्रिंट के अदर ऑप्शंस मिलते हैं, जैसे प्रिंट क्वालिटी एंड ऑल प्रिंट क्वालिटी, उसमें एडवांस्ड है। ये यहाँ पे ये स्क्रीन पे मैं लेके आने का एक मेरा मतलब यही था कि जो आप पेपर साइज चूज करते हो बाय डिफॉल्ट अपने यहाँ पे पेपर साइज लेटर कहते रहती है, लेटर प्री सिलेक्टेड होती है। अभी ये लेटर जो साइज है ये एक्चुअली अपने A4 साइज से थोड़ा छोटा होता है, अपने A4 साइज से थोड़ा छोटा होता है। तो आप अगर लेटर चूज करते हो और पेपर A4 डलवाते हो प्रिंटर में, तो आपको जो प्रिंट एरिया है वो काफी कम मिलता है। तो इन केस यू वांट टू इंक्रीज दैट प्रिंट एरिया, प्लीज इंश्योर दैट आप डिफॉल्ट प्रिंटर जो विंडोज में प्रिंटर का सेटिंग है वहां पे जाके उसको A4 सेट करके रखिए, तो हमेशा के लिए वो A4 सेट हो जाएगा और आपका जो प्रिंट एरिया है वो बढ़ सकता है। और अभी आपने अगर प्रिंट सॉरी ये जो एफर चूज करके यहाँ पे सेव कर लिया, ये यहाँ पे सेव करने से सेव नहीं होगा, आपको विंडोज में जाके एक बार सेव करना है तो आपको परमानेंटली अवेलेबल होगा। ये जो चेंज कर रहे हैं दिस इज अ टेम्पररी चेंज। तो अगर F12 में अगर करूँ तो देखिए मुझे यहाँ पे हाइट ऑफ नॉर्मल इनवाइस, विड्थ ऑफ नॉर्मल इनवाइस, ये मैं डिफाइन कर सकता हूँ, राइट। सो यहाँ पे मुझे अपना प्रिंटर सिलेक्शन का यूज होता है। नाउ आई एम कमिंग टू प्रिंट कमांड। ये देखिए प्रिंट कमांड देके F12 कमांड है, तो प्रिंट कमांड देके अगर मैं F12 कमांड दे रहा हूँ तो इसमें क्या क्या ऑप्शन आते हैं। मैंने जैसे कहा कि प्रिंट इन सिंपल फॉर्मेट, यस ये आपको मैंने कल भी मैं आपको बता चुका हूँ कि ये सिंपल फॉर्मेट में मेरी इनवॉइस इस तरह से प्रिंट होती है। अगर आपको सिंपल चाहिए बस ऐसे प्रिंट करिए, दिखने में अच्छा भी है, ब्यूटीफुल है, कोई प्रॉब्लम नहीं, यू कैन यूज दैट। प्रिंट कमांड देके फिर से F12, जस्ट एक्सक्यूज मी, या सो प्रिंट कस्टमर सिग्नेचर। अगर आपको इसमें कस्टमर सिग्नेचर प्रिंट करना चाहोगे, देखिए कस्टमर सिग्नेचर क्या होता है, जब भी आप इनवॉइस भेजते हो तो आप रिसीव्ड इन गुड कंडीशन करके लिख के देते हो, तो ये कस्टमर सिग्नेचर के पोर्शन में आ जाता है। ये देखिए कस्टमर सील एंड सिग्नेचर, जो सेकंड कॉपी होती है आपको, जो आपने एक ओरिजिनल कस्टमर को दे दिया, सेकंड कॉपी पे आप कस्टमर का सिग्नेचर लेते हो, तो ये यहाँ पे टाइम स्टैम्प यहाँ पे आ जाता है कि आपको कस्टमर का सील और सिग्नेचर की प्रिंट लेना है या नहीं लेना है। पहले तो इसको मैं सिंपल फॉर्मेट से हटाता हूँ और देखिए
यहाँ पे एक ब्लॉक आ जाता है, कस्टमर सील एंड सिग्नेचर। इस तरीके से आप यहाँ पे कस्टमर सील सिग्नेचर ले सकते हो। ऑल पे करके फिर से F12 में जाता हूँ, प्रिंट कंप्लीट मेलिंग डिटेल। अब ये कंप्लीट मेलिंग डिटेल क्या होता है? कंप्लीट मेलिंग डिटेल यानी आपका कंपनी का नाम आ गया, एड्रेस आ गया, ये इतना ही आता है। लेकिन अगर आपको कॉन्टैक्ट नंबर भी चाहिए, ईमेल भी चाहिए, तो अपने कंप्लीट ईमेल डिटेल में जाता हो। ये ऑप्शन बेसिकली इट इस वजह से अपना कंप्लीट मेलिंग डिटेल प्रिंट होता है। अगर ये नो कहूँ तो इसमें देखिए सिर्फ सॉरी, बेसिकली ये जो कंप्लीट मेलिंग डिटेल में और सारी जो इंफॉर्मेशन है, जैसे F12 में कॉन्टैक्ट डिटेल है, सॉरी ये मैं चेंज कर रहा हूँ यहाँ पे थोड़ा। तो अगर सेल्स पर्सन का नाम है मिस्टर KLM, यहाँ पे डलवाया नहीं था, यहाँ इस वजह से वहां पे प्रिंट नहीं हो रहा था। KLM एंड फोन नंबर 9122 2457 जो भी है। आई एम जस्ट इंसर्टिंग सम नंबर, सम मोबाइल नंबर। सपोज ये मोबाइल नंबर है, ईमेल आईडी है klm@klm.com। ये सारी इंफॉर्मेशन वहां पे प्रिंट होनी चाहिए, तो यू कैन चूज इट। राइट, अभी नहीं हो रही, लेकिन ये F12 करके अगर मैं चूज करता हूँ कंप्लीट मेलिंग डिटेल, यस, राइट। तो ये देखिए, ये सारी इंफॉर्मेशन जो कस्टमर की है यहाँ पे अभी प्रिंट होनी स्टार्ट हो गई है। स्टेट, ये कॉन्टैक्ट पर्सन कौन है, कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, ईमेल आईडी क्या है, ये इंफॉर्मेशन यहाँ पे प्रिंट होगी जस्ट एक कमांड की वजह से, प्रिंट कंप्लीट मेलिंग डिटेल। बाद में आता है प्रिंट एड्रेस इन कंटिन्यूअस लाइन। अभी क्या हो रहा है कि आपका जो एड्रेस लाइन जो है मल्टीपल लाइंस में जा रहा है, ये देखिए मल्टीपल लाइंस में प्रिंट हो रहा है। क्या आपको एक ही लाइन में चाहिए, तो आप इसको यस कहिए F12 एंड से प्रिंट एड्रेस इन कंटिन्यूअस लाइन, यस। तो वो एक ही लाइन में वो एडजस्ट करने का ट्राई करेगा। आई मीन एक ही लाइन में, यानी आई मीन टू से अगर 3 लाइन है तो उसको कॉमा देके वो उसमें ब्रेच करके उसको जहां पे भी जितना जगह मिल रहा है, इट विल ट्राई टू यूटिलाइज दैट स्पेस एंड विल ट्राई टू प्रिंट in the same line wherever possible. But of course, if it does not have any option but to take it to multiple line, then it will take it to multiple lines. But it will print a continuous, मतलब एक लाइन के बाद दूसरा लाइन आधा आ रहा है तो आधा, फिर उसका आधा बचा हुआ पार्ट सेकंड लाइन, फिर थर्ड लाइन, दिस वे। प्रिंट बैंक डिटेल यस और नो। अभी अभी मैंने आपको डिफॉल्ट बैंक के बारे में कहा था, ये जो बैंक की डिटेल यहाँ पे प्रिंट होती है, आपको ये प्रिंट करनी है या नहीं है, ये आप डिफाइन करते हो प्रिंट बैंक डिटेल। ये देखिए बॉटम में सिग्नेचर के ऊपर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे प्रिंट बैंक डिटेल्स आ रहा है। जो भी मैंने बैंक डिटेल दे रखा है वो प्रिंट हो रहा है। इसके बाद में है प्रिंट क्वांटिटी कॉलम और प्रिंट अल्टरनेट क्वांटिटी, प्रिंट एज सेपरेट कॉलम, ये सारे ऑप्शन हैं। ये आप यस करोगे तो वैसे आपको सारी इंफॉर्मेशन प्रिंट होगी। ये देखिए क्वांटिटी कॉलम है, इसमें शिफ्ट बिल्ड है। अभी मुझे शिफ्ट और बिल्ड का मैं निकाल देता हूँ बिकॉज आई डू नॉट वांट शिफ्ट एंड बिल्ड। तो लेट मी रिमूव दैट शिफ्ट एंड बिल्ड क्योंकि वो मेरी काफी ज्यादा स्पेस कंज्यूम कर रहा है। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे मेरे ख्याल से यहाँ पे अपना कोई भी ऐसा आइटम नहीं है जिसमें हमने अल्टरनेट यूनिट डिफाइन किया हो। शायद स्टॉक आइटम 1 में है क्या, नहीं, यहाँ पे भी नॉट एप्लीकेबल है। तो एक मैं अल्टरनेट यूनिट वाला मैं यहाँ पे चूज कर लेता हूँ। एग्जाम्पल हमारा रॉ मटेरियल 1 है, अगर मैं वो यहाँ पे डिफाइन करूँ, आई मीन सॉरी यहाँ पे चूज करूँ, तो ये देखिए इसमें क्या हो रहा है, 100 kg और 2000 नंबर, ये दोनों इसमें आ रहा है। तो ये देखिए अभी आपका जो सॉरी वो शिफ्ट एंड बिल्ड आ रहा है क्योंकि ऑलरेडी हमारा सेव्ड है। तो क्या हो रहा है यहाँ पे अल्टरनेट क्वांटिटी अलग बता रहा है, क्वांटिटी अलग बता रहा है। सो दोनों भी अलग कॉलम में आपका प्रिंट होके आ रहा है। थोड़ा अपना ये जो व्यू है डिस्टॉर्ट हो गया है, तो मैं मार्क्स एंड कंटेनर्स नंबर और नंबर एंड काइंड ऑफ पैकेजेस को हटा देता हूँ
तो थोड़ा बहुत तो अच्छा दिखना स्टार्ट हो जाएगा अपना जो इनवॉइस है वो। थोड़ा अलाइनमेंट में उसको इश्यू आ रहा है। ये तो मुझे यही से हटाना पड़ेगा। F12 में F12 है एक्सपोर्टेड डिटेल में, इसको मैं ना कहता हूँ नो, तो इट विल नॉट प्रिंट दैट इंफॉर्मेशन नाउ। ये देखिए वो अपना ऑप्शन तो हट गया है। शायद मैं इसको एक बार सेव कर लूँ तो ये इनवॉइस को शायद मेरा शिफ्ट और बिल क्वांटिटी भी हटने के चांसेस है। आई होप सो। एक बार रीसेव कर लेता हूँ इनवॉइस को। नहीं, वो शिफ्ट बिल का बिकॉज ऑलरेडी हमारा वहां पे एंटर्ड हो चुका है, तो इट्स नॉट अलाउइंग मी अनलेस एंड अनटिल आई मेक इट, आई रिमूव दैट पार्ट। सो एनीवे, सो अगर आपको शिफ्ट टाइप बिल्ड इसमें नहीं है, या तो एनी न्यू इनवॉइस इफ आई टेक जिसमें शिफ्ट एंड बिल्ड नहीं है, तो वो उतना पार्ट आपका प्रिंट नहीं होगा। ये आइटम ले लिया, गो डाउन, जो भी है आपका 100 क्वांटिटी एंड रेट। नहीं सॉरी, शिफ्ट एंड बिल्ड वो अभी लिंक ही हो चुका है। एनीवे, बट आई जस्ट वांटेड टू शो यू विदाउट शिफ्ट एंड बिल्ड अल्टरनेट क्वांटिटी और क्वांटिटी, ये दो कॉलम ही इसमें प्रिंट होना चाहिए थे, लेकिन नहीं हो रहे। डजंट मैटर, दिस इज द वे इट वर्क्स बेसिकली। F12 में F12, sorry, print command देखे, print command देखे F12 है, and then you have got all these options. What do you want to print and what do you want, what you don't want, you can select by making yes no, simple. अभी same है, I don't think I need to show you for each of this yes no what difference it makes. But print companies पैन एंड इनकम टैक्स नंबर, यानी कंपनी का पैन नंबर जो है आपको इनवॉइस पे प्रिंट करना है क्या। अभी मैं जो अपना कंपनी यूज कर रहा हूँ दैट इज RIL कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, तो इसका अगर पैन नंबर मैंने डिफाइन किया है, तो डू यू वांट टू प्रिंट दैट, यस और नो। आप यस कहोगे तो प्रिंट होगा, नो कहोगे तो नहीं होगा। प्रिंट कंपनी टैक्स रजिस्ट्रेशन डिटेल, यानी आपके जो भी टैक्स रजिस्ट्रेशन डिटेल है, जो भी है आपका, पहले वैट सर्विस टैक्स था, अभी GST नंबर है, तो डू यू वांट टू प्रिंट दैट। आप यस कहोगे तो वो प्रिंट होगा, नहीं कहोगे तो नहीं होगा। सेम वे अपना कंपनी का होने के बाद डू यू वांट टू प्रिंट कंपनी पार्टीज पैन नंबर, इनकम टैक्स नंबर, जो आपने कस्टमर सिलेक्ट किया है KLM कस्टमर प्राइवेट लिमिटेड, इनका पैन नंबर आपको प्रिंट करना है या नहीं है, नो या यस। प्रिंट बायर्स टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर, yes or no. Print buyer CST registration, of course CST is totally outdated, but that still remains here because of in case somebody wants to print the old invoices, then that option is still there. प्रिंट ऑर्डर डिटेल, अभी आपने जो ऑर्डर अगर इसमें डिफाइन की है, तो मेरे ख्याल से ये पर्टिकुलर इनवॉइस में अपना ऑर्डर नंबर था, तो इसमें हमें ऑर्डर नंबर प्रिंट करना है क्या, तो यस दिया है, तो इट विल प्रिंट दिस इंफॉर्मेशन, ऑर्डर नंबर, टर्म्स एंड डिलीवरी ऑफ टर्म्स एंड पेमेंट्स, टर्म्स ऑफ पेमेंट्स एंड डिलीवरी एंड प्रिंट डिस्पैच डिटेल। इसको तो ये सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर प्रिंट होगी। ये देखिए पेमेंट टर्म्स है, मोड एंड टर्म्स ऑफ पेमेंट 100% एडवांस, टर्म्स ऑफ डिलीवरी फ्री डिलीवरी टू योर गोडाउन। ये सारी इंफॉर्मेशन आपको यस नो के बस एक बटन क्लिक के यस या नो करके आप इसको प्रिंट कर सकते हो। फिर से जाता हूँ, Alt P F12, ये GST रिलेटेड इंफॉर्मेशन आ गई। प्रिंट कंपनी GSTN नंबर, प्रिंट बायर GSTN नंबर, प्रिंट आइटम वाइज GST डिटेल। ये क्या होता है ये देख सकते हैं, ये जो आइटम वाइज GST का डिटेल है, ये वहां पे प्रिंट हो रहा है कि CGST SGST एक ही इसमें एक ही कॉलम में। देखिए यहाँ पे CGST SGST का कॉलम एक ही इनवॉइस के कॉलम सेक्शन में आ गया है। तो ये आपको ऑप्शन इस तरह से आप यूज कर सकते हो, प्रिंट आइटम वाइज GST डिटेल, नो कहता हूं तो। और ये कॉलम, ये ऑप्शन जब आप यस करते हो तो बाय डिफॉल्ट आपका जो इनवॉइस है पोर्ट्रेट से चेंज होकर लैंडस्केप मोड यानी वर्टिकल से होके हॉरिजॉन्टल मोड में चला जाता है। सो पोर्ट्रेट
में वो क्योंकि डिटेल इतना फिट नहीं हो सकता, इसके लिए वो बाय डिफॉल्ट लैंडस्केप मोड में चला जाता है। प्रिंट जीएसटी एनालिसिस, जो अभी नीचे जो प्रिंट होता है, जो यूजुअली हम देख रहे हैं अपने इनवॉइस में, ये हो गया अपना जीएसटी एनालिसिस। ये अभी यहाँ पे प्रिंट हो रहा है क्योंकि हमने ऊपर से ऑप्शन निकाल दिया, क्योंकि यहाँ पे उतना स्पेस ही नहीं है कि हम वहां पे प्रिंट कर पाए। बाद में प्रिंट जीएसटी पर एचएसएन कोड, प्रिंट जीएसटी परसेंटेज, प्रिंट एचएसएन एसएसएन कॉलम, ये सारे ऑप्शन आप यस करते हो तो वो सारी इंफॉर्मेशन आपकी प्रिंट होने वाली है। ये देखिए एचएसएन और एसएससी कोड, जीएसटी रेट कितना है, 18% है, 12% है, 14 28% है, जो भी है आप डिफाइन कर लो, तो यहाँ पे वो प्रिंट होगा। आई मीन ऑलरेडी डिफाइंड है, वो वहां पे प्रिंट होगा इनवॉइस में जो भी डिफाइन किया। प्रिंट स्टेट नेम एंड स्टेट कोड, ये भी आप ये यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे स्टेट नेम एंड स्टेट कोड, स्टेट महाराष्ट्र, कोड 27, ये प्रिंट हो रहा है। प्रिंट प्लेस ऑफ सप्लाई, प्रिंट टैक्स इनवॉइस ऑन बेस करेंसी, इन बेस करेंसी, बेस करेंसी में प्रिंट करना है या फॉरेन करेंसी में, या यानी फॉरेन करेंसी इनवॉइस है। अगर आपने फॉरेन करेंसी में अपने इनवॉइस बनाया डॉलर में, तो वो आपको रुपीज में प्रिंट करना है, तो आप ये ऑप्शन को यस सेट कर सकते हो, तो आपका रुपीज में वो इनवॉइस प्रिंट हो सकता है। प्रिंट टैक्स अमाउंट फॉर एक्सपोर्ट इनवॉइस, अगर आपको इनवॉइस में टैक्स अमाउंट भी प्रिंट करना है तो वो प्रिंट कर सकते हैं। प्रिंट ईवे बिल, यस। प्रिंट एलयूटी बॉन्ड डिटेल, एलयूटी यानी लेटर ऑफ अंडरटेकिंग, बॉन्ड है, वो बॉन्ड की डिटेल आपको प्रिंट करने हैं, तो आपको यस करेंगे तो वो प्रिंट हो जाएगा, राइट। F12 यू नीड टू एक्सप्लोर दिस ऑप्शंस फ्रॉम आप इसको प्रैक्टिस के तौर पे इसको चेक करिए कि कैसे हर एक ऑप्शन का यूज होता है, देन ओनली यू विल बी एबल टू अचीव द मास्टरी इनटू इट। आपको खुद आप जब तक ट्राई नहीं करते आपको ये हर एक ऑप्शन समझ में नहीं आएगा। बाद में आता है मेजरमेंट्स। आपको एक इनवॉइस जो है A4 साइज में, अभी A4 साइज की जो हाइट होती है, A4 साइज की हाइट होते है 11.69 इंचेस, 11.69 इंचेस। अभी मुझे जो भी मेरे प्रिंट एरिया की हाइट देनी है, दैट शुड बी बिलो 11.69, तो मुझे मैक्सिमम यूटिलाइज करना है, तो इसको मैं 11.5 या तो 11.6 तक दे सकता हूँ, तो उतनी मेरी इनवॉइस की हाइट बढ़ जाएगी। अभी आपके मन में शायद ख्याल आ रहा है, यार ये यहाँ पे दो दो के ऑप्शन आ रहे हैं, एक तो लेफ्ट में भी आ रहा है और बाद में सिंपल करके लिख के आ रहा है वहां पे भी। तो अगर याद रहेगा, मैंने प्रिंट कमांड देने के बाद आपको एक ऑप्शन दिखाया था, प्रिंट इनवॉइस इन सिंपल मोड, प्रिंट इनवॉइस इन सिंपल मोड। तो ये जो सिंपल मोड के डायमेंशन है ये आपको वैसे ही रखने हैं, तो यू कैन डिफाइन द सिंपल मोड के डायमेंशन। विड्थ आपको कितना चाहे, बाय डिफॉल्ट मेरे से वो 8.25 या 8.5, 8.5 से कम ही है, 8.4 कुछ रहता है, तो उसके नीचे ही आपको आपका जो विड्थ है वो डिफाइन करना पड़ता है। यूजुअली हम 8 के ऊपर नहीं जाते। बाद में आपको ऊपर से मार्जिन कितना छोड़ना है, टॉप में मार्जिन 0.25 डिफॉल्ट है, लेफ्ट में कितना छोड़ना है 5.450 जो डिफॉल्ट है। अगर आपको इसको कम ज्यादा करना है तो यू कैन डिफाइन योर टॉप मार्जिन एंड लेफ्ट मार्जिन। आपको प्रिपेयर्ड एंड वेरीफाइड बाय के सिग्नेचर्स चाहिए क्या, तो यस करिए, नहीं चाहिए तो नो। प्रिंट वाउचर रेफरेंस, अब ये वाउचर रेफरेंस क्या होता है, ये जो रेफरेंस यहाँ पे दिख रहा है ना, दिस वी कॉल इट वाउचर रेफरेंस, तो ये आपको प्रिंट कराना है तो आप इसको यस करिए तो वाउचर रेफरेंस प्रिंट होगा। प्रिंट सीरियल नंबर, ये जो सीरियल नंबर है ये देखिए, ये भी चीज मैं आपको बताता हूँ। यस, ये देखिए सीरियल नंबर प्रिंट हो गया, देख रहे हैं आप, मतलब आपके 20 आइटम है तो 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह से आपका सीरियल नंबर प्रिंट हो सकता है। आपको लेजर नेम के लिए डिस्क्रिप्शन प्रिंट करना है क्या, मेरे ख्याल से ये चीज मैं आपको कल भी बता चुका हूँ कि स्टॉक आइटम के जैसे डिस्क्रिप्शन आता है उसी तरह से आपका अगर सर्विस इनवॉइस है, प्रोफेशनल टैक्स, प्रोफेशनल फीस का इनवॉइस है, तो आप उसके लिए भी वो डिस्क्रिप्शन आप डिफाइन कर सकते हो। आपको अगर याद रहेगा तो मैंने कल प्रोफेशनल फीस करके लेजर चूज किया था और डिस्क्रिप्शन पे लिखा था
ऑडिट फीस फॉर द ईयर, फॉर द फाइनेंशियल ईयर 1920, यानी 2019 से 20 तक का जो फाइनेंशियल का ईयर था उसका ऑडिट फीस के लिए ये बिल है, और ये मैंने डिस्क्रिप्शन में लिखा था। नरेशन, जो आपको नॉर्मल नरेशन दिखाई देता है वो आपको प्रिंट करना है क्या? प्रिंट नरेशन फॉर ईच एंट्री। सेल्स में ये शायद काम नहीं आएगा, क्योंकि सेल्स में हम नरेशन फॉर ईच एंट्री दे ही नहीं सकते, लेकिन पेमेंट है, जर्नल है, उसमें ये ऑप्शन कैसे यूज होगा मैं आपको बताऊंगा। सब टोटल फॉर ईच लाइन, यानी हर एक लाइन के बाद आपको सब टोटल प्रिंट करानी है क्या? ये सब टोटल क्या होती है देखिए, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने डिस्काउंट डिफाइन कर लिया है। एग्जाम्पल ये देखिए, यहाँ पे सपोज एक डिस्काउंट का ऑप्शन आ गया है, इसको मैं -10% कहता हूँ, एंड देन आई विल चूज CGST एंड देन SGST। तो देखिए इस तरह से ये हर एक लाइन के बाद एक सब टोटल का ऑप्शन दे देगा, राइट? इस तरह से ये ऑप्शन आप यूटिलाइज कर सकते हो इनकेस अगर आपको ये पूरा डिस्काउंट CGST 9%, SGST 9 एक के नीचे एक नहीं आना है, बट उसके नीचे आपका सब टोटल भी प्रिंट करना है, तो यू कैन डू इट इन दिस मैनर। Alt P, F12, ये सब टोटल वाला ऑप्शन मैं हटा रहा हूँ, एंड देन प्रिंट बिल वाइज डिटेल। जो बिल वाइज डिटेल आपको अगर प्रिंट करना है तो यस करिए, तो आपके बिल के डिटेल ये देखिए, ये कौन से बिल के अगेंस्ट, या तो न्यू रेफरेंस है तो न्यू रेफरेंस ये प्रिंट होगा। बेसिकली सेल्स के लिए ये ऑप्शन इतना यूजफुल नहीं है, लेकिन पेमेंट वाउचर हो या रिसीट वाउचर है या जर्नल वाउचर है, उसमें आप ये बिल वाइज डिटेल प्रिंट कर सकते हो। सेम में डिस्काउंट कॉलम प्रिंट करना है तो यस, एडिशनल डिस्क्रिप्शन फॉर लेजर नेम, जैसे आपने अभी थोड़ी देर पहले अकाउंटिंग के लिए देखा था, सेम वे इसके लिए देखना चाहते हो तो you can do that. I think by mistake I went to F12 again, sorry for that. सॉरी ये तो देख चुके हैं हम, सॉरी यही पे है। एडिशनल डिस्क्रिप्शन फॉर लेजर नेम प्रिंट करना है, नरेशन यूज करना है, सब टोटल बिल वाइज बेस एंड फॉरेन करेंसी फॉर टोटल। आपको जो अगर फॉरेन करेंसी इनवॉइस है तो आपको बेस करेंसी और फॉरेन करेंसी दोनों में टोटल करना है, तो यू कैन डू दैट। प्रिंट बैच डिटेल यस करोगे तो बैच डिटेल भी प्रिंट होगा। प्रिंट गोडाउन नेम करना है तो गोडाउन नेम भी प्रिंट होगा। गोडाउन का एड्रेस भी चाहिए तो वो भी प्रिंट होगा। जो भी आपको करना है सिर्फ आपको यस नो सेटिंग से ही करना है। प्रिंट डिक्लेरेशन, जो डिक्लेरेशन के बारे में मैंने कहा था कि वाउचर टाइप ने आपने जो डिक्लेरेशन लिखा है वो आपको प्रिंट कराना है, तो आप यहाँ पे प्रिंट करा सकते हैं। ये देखिए गोडाउन का दिया गया, गोडाउन का एड्रेस हमने लिखा नहीं, इसके लिए गोडाउन का एड्रेस नहीं प्रिंट हो रहा है, सिर्फ गोडाउन का नाम प्रिंट हो रहा है, राइट? So I think that's all for what we wanted to learn F12 settings in screen mode and in print mode. So in case you have got inquiries, because the topic was very lengthy, I do understand we have taken almost completely one session to understand F12 setting for sales vouchers. So maybe it could be little bit boring session, just because I'm talking, I'm making yes, no changes, and I'm showing you on the screen. So sometimes, there could be some moments wherein you would have felt the sessions to be a little going into uh, a boring mode kind of. So in case that is there, the only way how to make it interactive, you can keep me asking questions. या तो जैसे मैंने आपको कहा, आपके पास लैपटॉप है, कंप्यूटर है, तो आप सिर्फ अभी जॉट डाउन कीजिए, लिख के रखिए, और ये जो मैंने आपको बताया ये सब ट्राई कीजिए एक एक बार। आप ट्राई नहीं करोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, राइट? बट ऑफ कोर्स अगेन वन मोर थिंग इज, शायद ये इंफॉर्मेशन ज्यादा आपके लिए अहमियत नहीं रखती, क्योंकि ये तो क्या यस नो आपके डेटा पे एनीवे इम्पैक्ट नहीं करने वाला। ये सो सिर्फ आपको इंफॉर्मेशन आपके ध्यान में रखना है कि अगर आप वो सिचुएशन में आ जाए जहां पे आपको इनवॉइस प्रिंट करना है, ये इंफॉर्मेशन प्रिंट करना है या नहीं करना है, उस वक्त आपको अगर F12 बटन याद है, F12 तो आप डेफिनेटली वहां पे जाके वो चेक कर सकते हो, वो ऑप्शन आपको अवेलेबल है या नहीं है, राइट? We will move on.
तो जैसे मैं फिर से कम बैक टू माय ओरिजिनल टॉपिक कि मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पे कितने वाउचर टाइप्स अलाउड है अकाउंटिंग वाउचर में। कॉन्ट्रा है, पेमेंट है, रिसिट है, जर्नल है, सेल्स है। सेल्स तक तो हमने देख लिया। सेल्स साइकिल में हमने पहले सेल्स ऑर्डर बनाया, बाद में डिलीवरी नोट बनाया, बाद में सेल्स के ऊपर हमने काफी ज्यादा समय ले लिया। अभी इसके बाद में आता है मटेरियल रिटर्न। तो मुझे क्रेडिट नोट बनाना है, तो आई कैन मेक अ क्रेडिट नोट हियर। ये देखिए, ये क्रेडिट नोट है। पहले तो सबसे पहले मैं वो इनवॉइस नंबर देखना चाहूंगा जो मैंने बनाया है। तो क्योंकि क्या, वो मुझे डिफाइन करना पड़ेगा मेरे इनवॉइस में। दैट इज इट वाज मे 0002 2021। व्हाट आई डू, आई जस्ट कॉपी इट सो आई शुड नॉट फॉरगेट। F12 में शायद हमारा सेटिंग डिफॉल्ट फॉर बिल एलोकेशन यस है, उसको मैं नो करता हूँ तो मुझे बिल डिटेल दिखाई देंगे यहाँ पे। यस, सो I'll just choose this number 2। अभी इसके बाद में मुझे बनाना है क्रेडिट नोट। सो I'll go to accounts voucher and I'll just choose क्रेडिट नोट। क्रेडिट नोट चूज कर यहाँ पे ओरिजिनल इनवॉइस नंबर ये था, मैं ये बता रहा हूँ, और ये था 28 तारीख का, तो 28 तारीख एंड पार्टी नेम वाज KLM। चूज कर लिया। बाद में कौन सा मटेरियल मैं रिटर्न कर रहा हूँ, सॉरी कौन से मटेरियल मेरे पास रिटर्न आया है उसका मैं सेल्स इनवॉइस बना लूंगा, सॉरी क्रेडिट नोट बना लूंगा। कौन से ऑर्डर के अगेंस्ट वो भी लिख सकता हूँ। एंड फाइनली जिसमें 300 पीस दिए थे हमने, ये 300 में से मैं कहता हूँ कि 25 पीस वापस आ गए। 25 पीस वापस आ गए, तो उसके लिए मैं क्रेडिट नोट देना चाहूंगा। एंड इसके बाद में यहाँ पे CGST SGST भी डिफाइन कर रहा हूँ। CGST 9% और SGST 9%। ये देखिए, ये कहता हूँ कि ये सेल रिटर्न है। आपको ये रीजन भी देना पड़ता है GST रिटर्न भरते हो। अगर आपका उसमें रीजन स्पेसिफाइड नहीं है तो भी आपका रिटर्न में आपको इश्यू आ सकता है। सो प्लीज राइट अ रीजन। ये 2 नंबर के सामने मैंने क्रेडिट नोट बनाई। मैं आपको लेजर दिखाता हूँ फिर से कस्टमर का। डिस्प्ले में अकाउंट बुक्स में लेजर है एंड KLM। सो KLM के सामने देखिए 6,40,000 का इनवॉइस बना था, उसके सामने 51,625 का मैंने क्रेडिट नोट बनाया। यानी उतना सेल्स मेरा रिटर्न हुआ, इतना मटेरियल, उतना प्रोडक्ट रिटर्न हो चुका है। अगर आपको बिल वाइज में देखना है तो ये बिल वाइज का बटन है। बिल वाइज में देखिए यहाँ पे 2 नंबर का इनवॉइस, सॉरी यहाँ पे दो बार बन चुका है। आई एम सो सॉरी फॉर दैट। ये 1 नंबर है, 2 बार नहीं बना है। लेकिन रेफरेंसिंग कैसे मिक्सअप होता है ये देख लीजिए। मेरा बिल नंबर है 1, ये देखिए ऊपर 1 नंबर बिल है, और उसमें रेफरेंस कौन सा गया है, 2 नंबर का। और इसी वजह से देखिए मेरा सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे मिक्सअप होके आ रही है। एक ही रेफरेंस नंबर में मुझे 2 सेल्स इनवॉइस दिखाई दे रहे हैं। एक तो 1 लाख का है और दूसरा 6 लाख का है। तो सबसे पहले मुझे इसका रेफरेंस नंबर चेंज करना होगा। आई होप यू दिस इज वेरी गुड लर्निंग थिंग फॉर यू, क्योंकि ये जो है ये काफी बार यूजर्स को परेशान करता है कि मेरा इनवॉइस नंबर वो दिखाई नहीं दे रहा, या तो फॉर रीजन समथिंग इज रॉन्ग, देन यू कैन गेट इट करेक्टेड। ओके, तो ये देखिए अपना जो 2 नंबर का इनवॉइस था, ये एक्चुअली ओरिजिनली था 6,40,150। उसमें से मैंने क्रेडिट नोट इश्यू किया 651,625। तो मेरा नेट पेबल अमाउंट है या तो नेट रिसीवेबल अमाउंट है वो है 5,88,525। राइट, इसके बाद में मुझे पेमेंट आ रहा है तो आई कैन एंटर इट थ्रू अकाउंटिंग वाउचर्स एंड रिसीट। ये जो रिसीट है, ये रिसीट वाउचर का यूज करके आई कैन रिसीव माय पेमेंट इन KLM। सो KLM कस्टमर अगेंस्ट रेफरेंस, कौन से बिल के अगेंस्ट आपको रिसीव करना है, तो नंबर 2 के अगेंस्ट में भी पूरा 5,88,000 आपको रिसीव करना है, तो आप रिसीव कर लीजिए। अगर और बिल है, नंबर 1 भी रिसीव करना है तो वो भी कर लीजिए। टोटल 6,88,000 आपको रिसीव हो रहा है। और आपने ये जो चेक है या नेफ्ट है वो आपके IDBI अकाउंट में आपने डलवाया है, तो ये आपको यहाँ पे दिखाई देगा। ये देखिए यहाँ पे मुझे बैंक की इंफॉर्मेशन नहीं पूछी जा रही कि ये कौन से बैंक के डिटेल क्या है, तो F12 में इसमें ऑप्शन है
यूज डिफॉल्ट वैल्यूज फॉर बैंक डिटेल, मैं इसको नो कहता हूँ। ये जो डिफॉल्ट वैल्यू है मुझे नहीं करना है। यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि ये पेमेंट जो है चेक से आया है या फंड ट्रांसफर से आया है। अगर फंड ट्रांसफर से आया है तो आपको फंड ट्रांसफर का यहाँ पे जो भी यूटीआर नंबर है वो डिफाइन कर लीजिए। तो आपके नरेशन सॉरी बेसिकली रिमार्क्स में आ जाएगा इंस्ट्रूमेंट नंबर में। अगर आपका उनका जो ट्रांसमिटिंग बैंक है वो सपोज कैनरा बैंक है तो कैनरा बैंक चूज कर लीजिए। आरटीजीएस है निफ्टी जो भी है चूज कर लीजिए, सेव कीजिए एंट्री को एंड दैट्स इट। अभी अगर मैं फिर से अपना लेजर देखना चाहूँ, डिस्प्ले एंड अकाउंट बुक्स एंड लेजर दैट इज KLM कस्टमर लिमिटेड, ये देखिए बिल वाइज देखिए यहाँ पे अभी 6,40,000 का बिल बना था, पेमेंट आ गया है 6,88,000 बिकॉज ये दो बिल के अगेंस्ट मुझे पेमेंट आया है, एक तो 1 लाख और एक 6,40,000, यानी 7,40,000 के अगेंस्ट मुझे ये पेमेंट आया है। ओके तो यहाँ पे देखिए बिल वाइज देख लूं तो वो जो हमारे बिल क्लियर हो चुके हैं वो मेरे लिस्ट में से चले गए हैं, लेकिन F12 में जाके अगर मैं F12 ऑल बिल्स बताऊं, देख लूं ये ऑप्शन सेट कर लूं तो मुझे बताई दे रहा है कि 5,57,000 था, सॉरी ये जो था ये ऑलरेडी मेरा सेटल हो चुका है। कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पे, एक्चुअली अमाउंट रॉन्ग बता रहा है, ये न्यू रेफरेंस होना चाहिए। तो ये नाम का ऑलरेडी एक बिल बन चुका है, उस वजह से हमें वो तकलीफ दे रहा है कि 5,57,550 वो बता रहा है। वो विल ट्राई टू फाइंड आउट हियर व्हाट कुड बी द रीजन। और ये देखिए नंबर 2 में हमने जो सेल्स इनवॉइस बनाया था वो था 6,40,000 डेबिट एंड क्रेडिट नोट था 51,625 क्रेडिट, तो जो बैलेंस पेमेंट था 5,88,000 ये हमने रिसीट वाउचर से हम बना चुके हैं। सो दिस इज द वे यू कैन एंटर द रिसीट वाउचर इन टैली। ऑफ कोर्स इसके हमने काफी सारे अभी भी F12 ऑप्शन नहीं देखे हैं, तो शायद आज तो हम नहीं देखेंगे, वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट वाउचर। या तो ठीक है अगर हमें वेरी फास्ट वी कैन लुक एट इट बिकॉज वी वांट टू फिनिश अप अवर डेटा एंट्री, जो भी वाउचर इंटरसेक्शन है आज हमें फिनिश करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पेमेंट कॉन्ट्रा रिसीट जर्नल, ये चारों के जो F12 सेटिंग है सेम है। मैं रिपीट करता हूँ, कॉन्ट्रा रिसीट पेमेंट जर्नल के सेटिंग सेम है, तो हमें एनीवे ज्यादा टाइम इसमें नहीं लगने वाला F12 सेटिंग। मैं एज फास्ट एज पॉसिबल आई विल जस्ट ट्राई टू रन थ्रू इट कि इसका मीनिंग क्या है। स्किप डेट फील्ड ड्यूरिंग डेटा एंट्री फॉर फास्टर एंट्री क्रिएशन, यस करोगे तो देखिए ये डेट फील्ड पे मेरा कर्सर नहीं जा रहा है, लेकिन F12 में अगर इसको आप नो रखोगे तो ये डेट फील्ड पे लेके जाएगा। मुझे F2 करके ये देखिए बैक स्पेस करके यहाँ पे आई कैन चेंज माई डेट। ओके अभी और एक आपको एक मजेदार टैली की बात बताना चाहूंगा। टैली का डेट फील्ड है, आपने शायद काफी सॉफ्टवेयर यूज किए रहेंगे लेकिन टैली जैसा डेट फील्ड आपको कहाँ पे भी नहीं मिलेगा। मैं चाहूँ तो इसको 1.6 लिखूं तो 1 जून लेगा, 1 जे लिखूं तो भी वो पहले तो जान लेगा, सॉरी JU लिखूं तो शायद जून लेगा, जुलाई ले लिया सॉरी, क्योंकि JUN लिखो तो जून, या तो मे बी आई कैन से टुडे, टुडे लिखो तो आज का डेट ले लिया, टुमारो तो कल का डेट ले लिया। है ना फनी, आई मीन नॉट फनी आई कैन से, बट इज इट इंटरेस्टिंग कि इतनी फ्लेक्सिबल तरह से डेट कौन से आपकी चलते, कौन से सॉफ्टवेयर में आप इतने फ्लेक्सिबिलिटी देते हो डेट फील्ड में। दिस इज द पावर ऑफ टैली आई कैन से, डेफिनेटली वेरी 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 फ्रेंडली डेट फील्ड व्हाट वी हैव गॉट। आप जिस तरह से लिखना चाहो, 1 स्पेस लिखो 6 तो भी ले लेगा, 1 डैश लिखो 7 तो भी ले लेगा, जैसे लिखना आप लिख लो आपका डेट आ जाएगा, राइट। We'll move ahead. F12, I showed you skip date field during data entry for faster creation. Yes या no? आपको अगर faster creation के लिए date field पे नहीं जाना है तो no कहिए, sorry yes कहिए। Use single entry mode for payment receipt contra. Yes, this is very very important. I will make it yes. आपका जो डेबिट क्रेडिट फॉर्मेट था वो चला गया अभी। पहले कैसे था, ये आपका डेबिट और क्रेडिट फॉर्मेट था, देख लीजिए पर्टिकुलर्स डेबिट और क्रेडिट फॉर्मेट था, लेकिन F12 करके इसको अगर मैं
यस कहता हूं तो मेरा डेबिट फॉर्मेट क्रेडिट फॉर्मेट निकल गया। क्यों? इसका रीजन क्या है? क्योंकि टैली को एक पता है ये पेमेंट वाउचर है, तो मेरा जो क्रेडिट होगा, इट शुड बी आइदर कैश और बैंक। क्रेडिट होगा इट विल बी कैश और बैंक। सो इफ यू प्रेस स्पेस बार तो आपको यहाँ पे कैश और बैंक ये दोनों ही लेजर, दोनों तरीके के लेजर यहाँ पे दिखाई देंगे। इसके अलावा आपको कोई भी लेजर यहाँ पे दिखाई नहीं देगा। सो अगर मुझे बैंक से पे करना है आईडीबीआई से, सो आई कैन चूज आईडीबीआई बैंक। और बाद में किसको पे करना है, मे बी सैलरी पे करना है, so I can choose salary account and say pay this amount. I can do that. या तो in case I want to pay it to my suppliers. Okay, one more thing. Tally allows you flexibility. Tally allows you flexibility to type any word, और ये कोई भी लाइन में वो जो वर्ड प्रेजेंट रहेगा तो वो उतना शॉर्टलिस्ट होके आएगा। तो मैं सप्लायर प्रिंट कर रहा हूँ, देखिए मैंने क्या टाइप किया, सप्लायर, SUPP। अभी ये SUPP वर्ड जितने भी लेजर्स में है उतने शॉर्टलिस्ट हो गए। सो इट सिंप्लीफाइज योर सिलेक्शन। सो अगर इसमें मुझे से IFG सप्लायर्स को मुझे पेमेंट करना है तो आई कैन चूज दैट, यस आई वांट टू पे 95,000, सेव इट, वेरी सिंपल। तो इसका बेसिकली बेनिफिट क्या होता है कि जो कोई वेरी लेमैन रहता है या तो जो जिसका अकाउंटिंग बैकग्राउंड इतना स्ट्रांग नहीं होता है, उसके लिए ये पर्टिकुलर एंट्री मोड है, सिंगल एंट्री मोड, ये काफी यूजफुल हो सकता है, राइट? आई होप यू अंडरस्टूड, नथिंग मोर टू बी एक्सप्लेन इन दैट। यूज पेमेंट रिसीट एज कॉन्ट्रा वाउचर। अभी देखिए टैली की फ्लेक्सिबिलिटी देखिए, मैंने आपको क्या कहा था, जो कॉन्ट्रा वाउचर है इसको मैं एक्चुअली अभी नो कहता हूं, यूज सिंगल एंट्री मोड को। ये कॉन्ट्रा वाउचर में क्या होता था, ओनली कैश एंड बैंक दिखाई देते हैं, राइट? ओनली कैश एंड बैंक। सो इफ आई वांट टू मेक अ बैंक ट्रांसफर फ्रॉम HDFC टू IDBI बैंक, यानी HDFC से पैसा निकाल के IDBI में डालना है, तो मैं इस तरह की एंट्री करनी पड़ेगी मुझे। तो यहाँ पे देखिए कोई भी यूजर गलती कर सकता है। आपको लग रहा है कि कॉन्ट्रा वाउचर यूज कर रहा है लेकिन वो ABC कस्टमर सिलेक्ट कर रहा है, नहीं, क्योंकि उसको ऑप्शन ही नहीं है, यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं रहेगा। तो कैन ही चूज रॉन्ग लेजर? नो, बराबर है। लेकिन अभी मैं पेमेंट में आता हूँ, पेमेंट में आके मैं F12 यहाँ पे प्रेस कर रहा हूँ और यहाँ पे मुझे पूछ रहा है यूज पेमेंट रिसीट एज कॉन्ट्रा वाउचर, यानी ये पेमेंट और रिसीट वाउचर ये कॉन्ट्रा वाउचर की तरह मैं यूज कर सकता हूँ क्या? पहले नो रख के क्या इसका ऑप्शन आता है देख लेंगे। नो रखूंगा तो यहाँ पे मुझे कोई भी बैंक और कैश लेजर नहीं आ रहा है। देखिए मैं IDBI टाइप कर रहा हूँ, ID आ रहा है, IDBI नहीं दिखा रहा है, HDFC HD आ रहा है, नहीं आ रहा है, क्योंकि टैली को पता है पेमेंट वाउचर है तो डेबिट में, पहले डेबिट में कभी भी बैंक या कैश नहीं आएगा, और इसके लिए उन्होंने वो ऑप्शन ब्लॉक करके रखा। लेकिन किसी ने चाहा कि मुझे नहीं वो कॉन्ट्रा वाउचर की तरह यूज करना है, तो मैं इसको यस करूंगा, तो मुझे HDFC और IDBI दोनों बैंक यहाँ पे दिखाई देंगे। तो आप जो पेमेंट वाउचर है या तो रिसीट वाउचर है, इसको आप कॉन्ट्रा की तरह यूज कर पाओगे, राइट? यूज डेबिट क्रेडिट इंस्टेड ऑफ टू एंड बाय, वेरी सिंपल। ये अभी हमें टू एंड बाय, ये डेबिट क्रेडिट है, इसकी जगह टू एंड बाय दिखना चाहिए, क्योंकि जिसने भी अकाउंटिंग पढ़ा है यानी कॉमर्स स्ट्रीम लिया था, FYGC SYGC में, आपने टू कन्वेंस अकाउंट डेबिट 500 रुपया टू कैश अकाउंट, ये इस तरह की से एंट्री सीखी रहेगी। लेकिन उसके जगह कोई डेबिट क्रेडिट से फेमिलियर है तो आप डेबिट क्रेडिट यूज कर सकते हो, नहीं तो आप टू एंड बाय इस तरह आप यूज कर सकते हो। ये सब स्क्रीन चेंजेस है, इट विल नॉट इंपैक्ट योर डेटा। वन ऑन नेगेटिव कैश बैलेंस, अगर आपका कैश बैलेंस नेगेटिव है तो क्या आपको वन करे क्या? यस। तो सपोज सैलरी इतनी मैं पे कर रहा हूं टू कैश, ये देखिए नेगेटिव कैश, क्योंकि क्या मेरे पास बैलेंस कितना है, सम एक्स अमाउंट है, मे बी 4 या 5 लाख, 4.5 लाख रुपया। अगर मैं 50 लाख पे कर रहा हूँ तो इट शुड वांट मी नेगेटिव कैश बैलेंस। ये बस ये काम अपना
यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है कि वन ऑन नेगेटिव कैश बैलेंस, शो टेबल ऑफ बिल्स फॉर सिलेक्शन। ये अगर यस रहता है और मैं पेमेंट वाउचर में जाता हूँ और मैं फॉर एग्जांपल सप्लायर का नाम चूज करता हूँ, तो इसके कितने बिल पेंडिंग है? ये एक ही है इसमें, सॉरी दूसरा कोई है क्या? नहीं, इसमें भी एक है, शायद सब में एक है, फाइन। तो ये जो बिल का डिटेल दिखाई दे रहा है, ये जो टेबल दिखाई दे रहा है, ये आपको दिखाना चाहिए या नहीं, ये ऑप्शन आपको वो डिफाइन करता है F12, शो टेबल ऑफ बिल्स फॉर सिलेक्शन। यस करेंगे तो दिखाई देगा, नहीं करेंगे तो नहीं दिखा। शो फाइनल बैलेंसेस ऑफ बिल, यस आपको बिल का ओरिजिनल बैलेंस दिखना चाहिए, फाइनल बैलेंस दिखना चाहिए। आपने इसको नो रखा तो आपको ओरिजिनल बैलेंस दिखाएगा। अभी ये ओरिजिनल और फाइनल बैलेंस क्या है, मुझे मेरे ख्याल से और एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं। ओरिजिनल यानी ओरिजिनल इनवॉइस मेरा 1 लाख रुपए का था, उसमें मैंने क्रेडिट नोट, सॉरी इन दिस केस डेबिट नोट अगर 10,000 रुपए का दिया है तो मेरा फाइनल बैलेंस कितना हो गया? 90,000। सो डू यू वांट टू सी ओरिजिनल बैलेंस और फाइनल बैलेंस? शो बिल वाइज डिटेल, ये अभी आप बिल वाइज डिटेल बेसिकली ऊपर का था, टेबल का था, और ये जो नीचे का है, ये जो दिखाई दे रहा है ना यहाँ पे, ये स्क्रीन पे दिखाई देना चाहिए या नहीं, ये ऑप्शन आपका डिफाइन करता है शो बिल वाइज डिटेल। एक्सपैंड इनटू मल्टीपल लाइंस, अगर ज्यादा लाइंस है तो वो एक्सपैंड होना चाहिए क्या? यस। शो करंट बैलेंसेस ऑफ लेजर, यहाँ पे जो करंट बैलेंस दिखाई दे रहा है ना आपको, ये देखिए करंट बैलेंस 0, करंट बैलेंस 1145, ये बैलेंस। शो बैलेंस एज ऑन वाउचर, हाँ तो अगर आपको करंट बैलेंस देखना है तो क्या आप जो आपका करंट बैलेंस है एज ऑन वाउचर डेट देखना चाहते हो या एज ऑन सिस्टम डेट? आपको जिस तरह, यानी सिस्टम डेट यानी माय डेट ऑफ लास्ट एंट्री। अगर मैं कोई बैक डेटेड एंट्री कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी डेट ऑफ लास्ट एंट्री सपोज 28 मई है, आज का दिन है, और मैं कोई भी 20 तारीख को एंट्री कर रहा हूँ, तो मुझे 20 तारीख का बैलेंस दिखना चाहिए वो लेजर का या आज के दिन का? ये ऑप्शन वो डिफाइन करता है शो बैलेंस एज ऑन वाउचर डेट। शो लेजर फाइनल बैलेंसेस, आपको लेजर के जो फाइनल बैलेंस है वो दिखने चाहिए या नहीं, ये आप यहाँ पे यस या नो कहते हैं। आप जो सेट करोगे वैसे वो दिखाई देगा। प्रिंट चेक आफ्टर सेविंग वाउचर, अगर जैसे ही आप वाउचर प्रिंट करोगे, सॉरी सेव करोगे, तभी आपको चेक प्रिंट का ऑप्शन आना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। आप नो कहोगे तो आपको प्रिंट चेक के लिए नो पूछेगा नहीं, यस रखोगे तो आपको वो ऑप्शन दे देगा। कंफर्म ईच चेक बिफोर प्रिंट, आप जितने भी प्रिंट चेक कर रहे हो, सॉरी चेक प्रिंट कर रहे हो, तो वो आपको पूछना चाहिए हर एक चेक के लिए बिफोर प्रिंटिंग, यस और नो। यूज रेफरेंस नंबर इन पेमेंट, ये जो रेफरेंस नंबर है ना, यहाँ पे देखिए सेल्स में मैंने बताया था, लेकिन यहाँ पे रेफरेंस नंबर कोई दिखाई नहीं दे रहा है। देखिए दिख रहा है कि जीएसटी जो है 16 कैरेक्टर्स के ऊपर वाउचर नहीं एक्सेप्ट करता, तो आपको 1 होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, राइट? यूज डिफॉल्ट वैल्यूज फॉर बैंक डिटेल्स, अभी डिफॉल्ट वैल्यूज अगर मैंने डिफाइन कर लिया है तो वो आपको बैंक डिटेल में वो ऑटोमेटिकली वो लेना चाहिए क्या? अगर ये मेरा ऑप्शन है यहाँ पे शो बैंक अलोकेशन डिटेल, अगर ये नो रहा तो टैली को समझना चाहिए कि डिफॉल्ट वैल्यूज क्या दिया है। फॉर एग्जांपल ये देखिए, ये सप्लायर का लेजर है जिसमें मैंने बैंक डिटेल में कुछ डिफॉल्ट वैल्यूज सेट किया है कि इसका जो पेमेंट मेथड है ये ई पेमेंट होना चाहिए, इसका अकाउंट नंबर ये होगा, इसका आईएफएससी कोड ये होगा, ये सब मैंने डिफॉल्ट यहाँ पे डिफाइन करके रखा है, राइट? बैंक आईडी बाय बैंक होगा, अगर ये सब मैंने डिफॉल्ट चूज करके रखा है तो, और मैंने ये ऑप्शन F12 में शो बैंक एलोकेशन डिटेल को नो रखा है, तो टैली को वो बैंक के डिटेल तो फिल करने पड़ेंगे। तो आपको यूज डिफॉल्ट फॉर बैंक एलोकेशन यस रखा है तो आपको बैंक एलोकेशन की विंडो के बारे में पूछेगा नहीं। नो है तो आपको देखिए आईडी बाय बैंक के बाद में मुझे ये विंडो आ रही है, ये विंडो मुझे दिखाई नहीं देगा। और देखिए वही से फिल अप कर लिया,
जो मैंने कस्टमर के लेजर में लिखा था, ये सब यहाँ पे ऑटोमेटिकली डिफॉल्ट वैल्यूज फिल हो चुका है। यूज ऑटो चेक नंबरिंग, यस, अगर आप ऑटो चेक नंबरिंग यूज करना चाहते हो, यानी एक नंबर के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, ऐसे आपको आना चाहिए, तो आप यस करिए। नो रखेंगे तो वो ऑटोमेटिकली नहीं आएगा, आपको टाइप करना पड़ेगा। अलो सिलेक्शन ऑफ चेक रेंज, यस, अभी ये जो सारे इंफॉर्मेशन थी यहाँ पे, अगर मैं ई फंड के बजाय चेक सिलेक्ट करता हूँ तो ये हो गया चेक रेंज। आपको कौन से बुक में से चेक इशू करना है वो आप चूज करते हो, या तो कौन सा इंस्ट्रूमेंट नंबर आपका है। ये बाय डिफॉल्ट अभी नंबर 3 आया है, ये बाय डिफॉल्ट आना चाहिए क्या सिक्वेंशियल? आपने यस किया तो यस वो आएगा, नहीं किया तो ये ब्लैंक रहेगा, और ये आपको इस तरह से टाइप करना पड़ेगा। ओके, very simple options, nothing complicated in that. F12, फिर से इसके अंदर F12 के अंदर F12 है, प्री एलोकेट बिल्स फॉर पेमेंट रिसीट जर्नल वाउचर। यस, ये मैं आपको दिखा चुका हूँ, फिर भी एक बार मैं दिखाना चाहूंगा आपको। अगर मैं रिसीट वाउचर बना रहा हूँ, पेमेंट नहीं लेता मैं, क्योंकि पेमेंट में मल्टीपल बिल है ही नहीं। F6 रिसीट बना रहा हूँ, मुझे एबीसी कस्टमर से कुछ पैसे, देखिए इतने सारे चेक है, राइट। तो अभी क्या हो रहा है कि मैं जैसे कस्टमर का नाम चूज कर रहा हूँ, लेजर कस्टमर का नाम चूज कर रहा हूँ, तो इसके बाद में मुझे सीधा बिल का डिटेल बता रहा है। यानी मैं बिल चूज कर लूँ, और जितने बिल चूज कर लूँ, इसका जो अमाउंट है ये मेरे अमाउंट कॉलम में ऑटोमेटिकली चला जाएगा, राइट। लेकिन जो बाय डिफॉल्ट जो ऑप्शन हमारा सेट होता है F12 में, पेमेंट में है F12 प्री एलोकेट बिल्स फॉर पेमेंट, यानी पहले आप वो बिल का डिटेल दिखाओ और बाद में वो ऑटोमेटिकली अमाउंट में फिलअप होना चाहिए। तो ये देखिए अभी यहाँ पे अमाउंट कॉलम में पहले जा रहा है, मुझे वो कैलकुलेट करके अमाउंट लिखना पड़ना है, और बाद में मैं चूज करता हूँ यहाँ पे कौन सा पे करना है, राइट। इस तरीके से मैं ये डिफरेंशिएट कर सकता हूँ, क्योंकि मैं अगर बिल टू बिल पे कर रहा हूँ तो मुझे ये ऑप्शन काफी यूजफुल है कि मैं प्री एलोकेट कर लूँ एंड ना के पहले अमाउंट कॉलम में लिख लूँ। F12 शो इन्वेंट्री डिटेल, अगर आप इन्वेंट्री वैल्यूज यूज कर रहे हो तो इन्वेंट्री डिटेल शो करो, कॉस्ट सेंटर डिटेल शो करो, कॉस्ट सेंटर इन ऑटो कॉस्ट लिस्ट वो डिस्प्ले करो, शो फॉरेक्स गेन लॉस वो डिस्प्ले करो, सब ये डिस्प्ले के ऑप्शन है। शो पार्टी डिटेल्स फॉर जीएसटी, अगर आप कोई भी पेमेंट कर रहे हो जिसमें जीएसटी इन्वॉल्व है, यानी कि फॉर एग्जांपल लेजर है, ओके, एक लेजर को आपने चूज कर लिया और उसमें आपको पार्टी डिटेल फिल करना है, तो यू कैन डू दैट। एग्जांपल कुड बी से example is say I am charging a consultancy charges, okay, somebody has given a bill of consultancy charges, लेकिन वो सिर्फ 10,000 का बिल है, और 10,000 का बिल, और इसके बाद में शायद मुझे वो पूरे साल में बिल देने वाला नहीं, या तो बाद में मुझे ये लेजर की जरूरत भी नहीं होगी, तो इसका लेजर मैं नहीं बनाऊंगा, या तो वो जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड भी नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ, कंसल्टेंसी चार्जेस अकाउंट डेबिट, ओके, ये लिखता हूँ, और उसमें मुझे पार्टी डिटेल्स डिफाइन करना है, और ये मैं ऑप्शन यस करता हूँ तो मुझे पार्टी के डिटेल्स वो पूछेगा। ये देखिए मैं अगर कहता हूँ ये प्रोफेशनल फीस है, एक्सपेंसेस, सॉरी ये तो बैंक के लिए पूछता है, राइट। सो बेसिकली व्हिचएवर हैज अ जीएसटी इम्प्लीकेशन, वो लेजर के लिए वो हमें पार्टी के डिटेल पूछता है। तो यानी बैंक के लिए अभी वो हमने जो डिफाइन किया है, तो बैंक एज अ पार्टी लेजर इट इज ट्रीटिंग एंड इट इज आस्किंग मी फॉर द पार्टी डिटेल्स फॉर जीएसटी, तो मैं नो करता हूँ। अलो मॉडिफिकेशन ऑफ टैक्स डिटेल्स फॉर जीएसटी, यस, ये तो मैं ऑप्शन में आपको बार बार दिखा चुका हूँ। ये जो पर्टिकुलर विंडो जो पॉपअप होती है, ये यस नो के वजह से यहाँ पे हमें ये विंडो पॉपअप हो रही है। फिर से F12 में जाऊं, अलो टैक्स डिफरेंस अप टू, यानी जैसे मैंने कहा कि अगर आपका राउंडिंग ऑफ की वजह से डिफरेंस आ रहा है, ओके, मैंने अगर कोई एक इनवॉइस बनाई से 17,700 रुपए की, 17,700 रुपए अज्यूम करते कि एक
पर्टिकुलर परसेंटेज है, 9% हम CGST लगा रहे हैं, तो शायद वो डेसिमल्स में जा सकता है। और जब भी वो डेसिमल्स में जाता है तो वो जो बेसिकली डिफरेंस है हमें अपने GST रिटर्न भरते वक्त हमें थोड़ा तकलीफ दे सकता है। तो अगर आपको वो जो टैक्स डिफरेंस है 1 रुपये प्लस और माइनस करना है, तो आप यहाँ पे 1 लिखेंगे, तो 1 प्लस माइनस ग्रेटर और लेसर इस तरह से आप डिफाइन कर सकते हो, and it will take care of that. But by default, we always suggest to keep that option as no, यानी zero. Allow modification for tax detail. जैसे GST का टैक्स डिटेल था, वैसे TDS के लिए आपको मॉडिफाई करने का ऑप्शन आना चाहिए या नहीं। ऑफ कोर्स इसके बारे में हम GST और TDS के मॉडल में हम सीखने ही वाले हैं, तो इवन दो यू डोंट पे मच अटेंशन ऑन दिस नाउ, दैट इज ओके फॉर अस। ये हो गया हमारा पेमेंट का F12। अगर आपको F6, almost 95% I can say it is same, all the options are same. All the options are same here, right? इसमें F12 में F12 नहीं, सिर्फ पेमेंट में F12 था। कॉन्ट्रा का जो भी है F12 में, ये देखिए ये भी ऑलमोस्ट सिमिलर ऑप्शन है यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे सिर्फ 2-3 एडिशन क्या है कि ये देखिए कंफर्म ईच चेक फॉर बिफोर प्रिंट, ये तो था। शो कैश डिनोमिनेशन डिटेल, अगर मैं कैश फिलअप कर रहा हूँ बैंक में, ये कॉन्ट्रा वाउचर है, अगर मैं कैश फिल कर रहा हूँ, कैश अकाउंट क्रेडिट 10,000 रुपया में अगर मैं बैंक में भर रहा हूँ IDBI बैंक में, तो मुझे डिनोमिनेशन पूछेगा। ये देखिए, ये मैंने आपको विंडो दिखा चुका हूँ मेरे ख्याल से पहले भी, कि 4 2000 के नोट और 4 500 के नोट, इस तरह मेरे 10,000 पूरे हो गए। और ये मेरे डिपॉजिट स्लिप में भी प्रिंट हो सकते हैं। इसका अगर मुझे डिपॉजिट स्लिप प्रिंट करना है, एक मिनट, F12, इसको अगर मैं सेव करूं, एक जस्ट एग्जांपल तौर पे बैंकिंग में ये डिपॉजिट स्लिप है, कैश डिपॉजिट स्लिप, ये IDBI बैंक की देखिए, इसको अगर मैं प्रिंट करना चाहूँ, प्रिंट, ये देखिए कैश डिपॉजिट स्लिप, इस तरह मेरे कैश डिपॉजिट स्लिप में बना सकता हूँ। और ये मैं बैंक में जाके ऐसे, अगर इन केस यू आर डीलिंग मच मोर इन कैश एंड यू हैव डिफरेंट कैश टू बी